بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بہت خوشباش ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ جو آج ہم نے سٹوری شروع کرنی ہے اس کا نام ہے سناٹوں کا شور بائی فوزیہ یاسمین۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ تجھے زندگی میں کبھی غم نہ ہو، تیرے راستے میں کوئی خم نہ ہو، بھول جا تو میرے دیے ہر زخم کو، تیری آنکھ کبھی نم نہ ہو۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرن۔ کرن حیرت زدہ سی خوبصورت سے کارڈ پر جگمگاتی تحریر کو دیکھتی رہی۔ ابھی چوکی دار نے اسے یہ پارسل دیا تھا جو اس کی غیر موجودگی میں کوریئر کرتے بھیجا گیا تھا، مگر پارسل کے اوپر اور اندر کہیں بھی بھیجنے والے نے اپنا نام تحریر نہیں کیا تھا۔ رائٹنگ کرن کے لیے یکسر اجنبی تھی، مگر اس کا وجدان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ لکھائی اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تحفہ اور کارڈ اسی نے ارسال کیے ہیں، لیکن کیوں؟ اب اتنے سال بعد کیوں؟ اتنی طویل خاموشی کے بعد کیوں؟ کئی سوال اس کے اندر سر اٹھانے لگے۔ اس کی زندگی ویسے بھی کوئی بہت پرسکون نہیں تھی، مگر کافی عرصے سے ایک سے شب و روز کی وجہ سے وہ اس کے معمول کی عادی ہو گئی تھی۔ لیکن آج ساجد کی جانب سے ملنے والے کارڈ نے اس کی زندگی پر چھائے جمود میں ایک تلاطم سا برپا کر دیا تھا۔ کرن، تم نے وہ پارسل کھول کر دیکھا؟ کچھ پتا چلا کس نے بھیجا ہے؟ پاپا کی آواز پر وہ چونک اٹھی۔ وہ اپنے کمرے میں سونے جا رہے تھے، اسی لیے دروازے سے ہی پوچھ لیا۔ جی، وہ میری دوست نے بھیجا ہے۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ اس کے منہ سے جھوٹ کیوں نکل گیا۔ شاید اس بے نام پارسل کے متعلق بتا کر وہ ان کا خوشگوار موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور واقعی اس کا جواب سن کر وہ کچھ مطمئن سے ہو کر مسکرا دیے تھے۔ ذیشان بھائی اس کی سالگرہ کی خوشی میں سب کو پیزا ہٹ لے کر گئے تھے، اور ان کی واپسی پر ہی یہ چوکیدار نے اس کے حوالے کیا تھا۔ بلکہ کیا کیا تھا، ذیشان بھائی نے ہی گاڑی اندر لاتے ہوئے اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے اس خوبصورت ریپر میں لپٹے پیکٹ کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کرن بھی بڑے تھکے ہوئے انداز میں گفٹ لے کر کمرے میں آئی تھی۔ اسے صبح آفس جانا تھا، چنانچہ وہ جلد سے جلد فارغ ہو کر سونا چاہتی تھی۔ اس نے جیسے تیسے ہمت کر کے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پر لیٹنا ہی چاہتی تھی کہ جانے اس کے دماغ میں کیا سمائی، اور اس نے گفٹ کھول لیا، جسے کھولنے کے بعد اس کی نیند ہی اڑ گئی۔ اسے ایک ہی سوال بے چین کر رہا تھا، اگر یہ اس نے بھیجا ہے نا تو نام کیوں نہیں لکھا؟ یا یہ اس کی کسی دوست کی شرارت ہے؟ ورنہ وہ اب 5 سال کی خاموشی کے بعد ایک دم کہاں سے آ گیا؟ مگر اس کی کوئی دوست اسے قیمتی تحفہ نہیں دے سکتی تھی، اور اگر دیتی تو نام لکھ کر جتاتی ضرور۔ مگر وہ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کل وہ آفس جائے تو اسے پتا چلے کہ یہ گھڑی اس کی کولیگ عالیہ نے دی ہے، تب اسے زیادہ تکلیف ہوگی۔ مگر اس کا زخم تو رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اندر سے اٹھتی خوش فہمیاں اس کی کوئی تعویل نہیں قبول کر رہی تھیں۔ وہ جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ یقین کرنے پر بضید تھی کہ یہ گمنام تحفہ ساجد کے علاوہ کوئی نہیں بھیج سکتا۔ صرف اسی کو یہ خدشہ ہوگا کہ اس کا نام پڑھ کر کرن تحفہ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے گی، جبکہ وہ اسے کلائی پر باندھ کر دیکھنے لگی۔ گھڑی کی خوبصورتی سے ہٹ کر جب اس نے ٹائم پر نظر ڈالی تو بری طرح چونک اٹھی۔ گھڑی میں موجود ٹائم اور ڈیٹ دونوں ہی غلط سیٹ ہوئی تھیں، مگر اس کے چونکنے کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ گھڑی میں 6 سال پہلے کی جو تاریخ اور وقت نظر آ رہا تھا وہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ جان بوجھ کر سیٹ کر کے گھڑی کو وہیں روک دیا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو اور کرن کے رستے زخم ایک دم ادھڑ گئے تھے۔ گویا اس کا اندازہ صحیح تھا، وہ کسی خوشگمانی کا شکار نہیں تھی۔ ٹھیک اسی تاریخ کو اس وقت وہ اس سے پہلی بار ملی تھی۔ کزن ہونے کی حیثیت سے ویسے تو وہ اسے بچپن سے جانتی تھی، لیکن الگ الگ شہروں میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے ان کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی، اور ہوش سنبھالنے کے بعد وہ 6 سال پہلے اس سے ملی تھی، جب وہ ذیشان بھائی کی شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے ٹرین کے ذریعے ان کے شہر آیا تھا۔ ذیشان بھائی کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اتنے عرصے بعد ساجد کو دیکھ کر پہچان سکیں گے بھی یا نہیں، تبھی اسے بھی ساتھ لے گئے تھے۔ گرمیوں کے ان دنوں میں ریلوے اسٹیشن پر بھری دوپہروں میں اسے ڈھونڈتے وقت اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ ایسے کھو جائے گا جیسے اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اس وقت بھیڑ اور رش دیکھ کر وہ کتنا الجھ رہی تھی، مگر آج اس پل کو یاد کرتے ہوئے اسے وہ گرمیوں کی بھری دوپہر اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کے خوابناک ماحول سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام منظر کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پر چلنے لگے تھے۔ جب وہ بے حس ستم گر اس دن، تاریخ اور وقت کو نہیں بھول سکا تھا تو بھلا کرن کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ ریلوے اسٹیشن پر اتنی بھیڑ دیکھ کر ہی کرن کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ابھی تک تو اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اتنے سالوں بعد ساجد کو پہچان بھی سکے گی یا نہیں۔ اس پر اتنا رش، گرمی اور حبس نے رہی سہی سکت بھی چھین لی تھی۔ کہیں نظر آ رہا ہے ساجد؟ ذیشان نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے وہ گلے میں ساجد نامی تختی لے کر پھر رہے ہوں۔ بھائی، آپ کم از کم ایک بورڈ ہی لے کر آ جاتے۔ کرن نے کہا تو ذیشان بھی چڑ گیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، مجال ہے جو کبھی وقت پر نکل سکیں۔
अरे वाह, मेरा क्या कसूर? ट्रेन कभी वक्त पर नहीं आती, मगर आज क़यामत की निशानी की तरह वक्त से पहले आ गई। और अगर मेरी वजह से देर हुई है तो मुझे लेकर आना कोई ज़रूरी नहीं था, आप अकेले आ जाते। किरण इस इल्ज़ाम पर भड़क उठी। वो ज़ीशान से उम्र में काफ़ी छोटी थी, मगर बेतकल्लुफ़ी ऐसी थी जैसे हम उम्र दोस्त हों। मैंने सोचा मैं अकेला साजिद को कैसे पहचानूंगा। ज़ीशान की झंझलाहट इधर से उधर लगने वाले धक्कों की वजह से बढ़ती जा रही थी। किरण इस सूरत हाल से बचने के लिए हैरत अंगेज तौर पर खाली मिल जाने वाले बेंच पर बैठ गई थी। आप वासिफ और आमिर को ले आते ना। अरे अगर वो इतने काम के होते तो मैं क्यों आता। ज़ीशान ने मुंह बनाया किरण के अपने खालाजाद भाइयों के जिक्र करने पर। क्यों, आप क्या मायूं बैठ गए हैं? किरण शरारत से बोली। ज़ीशान की 15 दिन बाद शादी थी और इसी सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों से उनके रिश्तेदार शिरकत के लिए आ रहे थे। जो थे तो उनके बहुत करीब के अजीज, मगर उनसे मुलाकात बहुत कम होती थी, यानी कि उसके चचा के घराने के लोग। चचा चची तो फिर भी 2 साल में एक बार आ जाते, मगर उनका बेटा साजिद आखिरी बार तब आया था जब वो क्लास 8 में पढ़ता था, और अब वो बीकॉम कर रहा था। उसका छोटा भाई माजिद भी उसकी तरह इतने साल पहले ही आया था, क्योंकि वो 10th के बाद बाहर पढ़ने चला गया था। उसका पाकिस्तान आना बहुत ही कम था, और उनके घर क्या आता। मगर साजिद की इतनी तवील गैर हाजिरी उसके लिए इंतहाई पसंद होने उसके उसके तन्हाई पसंद होने को जाहिर करती थी। शायद उसे खानदान वालों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर दादा जान को उससे मिलने का बहुत शौक था। उन्होंने खास तौर पर चचा जान को फोन करके उन्हें ताकीद की थी कि साजिद को ज़ीशान की शादी में शिरकत के लिए हर हाल में भेज दिया जाए, और शायद चचा जान के इसरार पर वो शादी से 2 हफ्ता पहले ही आ गया था। हालांकि खुद चचा जान और चची अम्मा शादी से 3 दिन पहले आ रहे थे। दादा जान ने ज़ीशान को इसलिए रिसीव करने के लिए भेजा था, जो यहाँ आते वक्त अपना मोबाइल घर ही भूल आया था। अब उसे बस एक ही फिक्र सता रही थी कि साजिद उन्हें स्टेशन पर ना पाकर कहीं टैक्सी पकड़कर घर ना चला गया हो। इतने सालों बाद वो कराची आया था, उसके लिए एड्रेस तलाश करते हुए पहुंचना जो शेर लाने के बराबर होगा। ऐसे में जब ये सब दादा जान को पता चलेगा तो वो ज़ीशान की तिक्का बोटी एक कर देंगे। हालांकि वो इतने खतरनाक नहीं, उनका बस रौब बहुत था। किरण, मेरा ख्याल है हमें साजिद को अलग अलग जाकर ढूंढना चाहिए। तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ, और चाहे साजिद मिले या ना मिले, 10 मिनट बाद हम दोनों वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। ज़ीशान ने कहा और फौरन दूसरी तरफ मुड़ गया, जबकि वो हवास बागता सी उन्हें जाता देखती रही। इतना रश था कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। उसका बेंच से उठकर इस धक्कम पेल में जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। उसके पास तो घड़ी थी ही नहीं जो 10 मिनट बाद वो यहाँ आ जाती। वो यहीं बैठकर 10 मिनट गुजरने का इंतजार करने लगी। मिस, इस अफरा तफरी के माहौल में आप ही कदरे पुरस्कून लग रही हैं। अगर आप ये बैग अपने पास रख लें तो मुझे अपने गुमशुदा रिश्तेदारों को ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बहुत भारी है, कुली तक तंग आकर पटक कर चला गया है। मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लड़का उसे बोलने का मौका दिए बगैर कहता चला गया, और बैग सामने रखकर पलटने लगा कि किरण घबराकर खड़ी हो गई। भाई साहब, आप अपना बैग उठा लें, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अब दोबारा मैं ये बैग नहीं उठा सकता, आप शक्ल से शरीफ लग रही हैं। प्लीज ये बैग रख लें, मैं कौन सा आपसे बोझ उठाने को कह रहा हूँ, बस नजर ही तो रखनी है। वो माथे से बहते पसीनों को पोंछते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला। अरे हद करते हैं आप। चाहे कोई भी कितना भी शरीफ लग रहा हो, किसी को इस तरह अपना सामान नहीं देना चाहिए। और फिर अगर कोई इसे उठाकर भाग निकला तो मैं क्या करूंगी। आप प्लीज अपनी अमानत किसी और के पास रखवा दें, फिर क्या मालूम आपने इस बैग में क्या रखा हुआ है। आखिरी जुमला किरण अपने मुंह में बड़बड़ाई थी, लेकिन उसने सुन लिया। बेफिक्र रहें, इसमें कोई बम नहीं है। मेरे कपड़े कम और रिश्तेदारों के तोहफे ज्यादा भरे हैं। आप चाहे तो खोल कर देख लें, मुझे कोई शौक नहीं है देखने का, आप बस इसे उठा लें। किरण ने मतलाशी नजरों से ज़ीशान को देखा। वो यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। उसने ऐसे अपनी कलाई की जानिब देखा जैसे शायद गलती से उसने घड़ी बांध ली हो, मगर जब गलती की ही नहीं तो घड़ी कैसे आ जाती। वो सिर्फ अपनी कलाई को मसल कर रह गई। 2:10 हो रहे हैं। उसके अंदाज पर वो फौरन बोला था, और उसके जवाब ना देने पर वो खुद ही कहने लगा, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, और अगर मैं ना आऊँ तो भले ही आप इन्हें अपने साथ ले जाइएगा। इन बैग्स में मेरा नंबर भी लिखा है, आप मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आपके घर आकर ले जाऊंगा। वो पता नहीं क्या बोल रहा था। किरण सुनने से ज्यादा ज़ीशान को ढूंढने में मसरूफ थी, मगर जैसे ही वो पलटा किरण तकरीबन चिल्ला उठी, आप होश में तो हैं? मुझे कोई शौक नहीं आपका सामान घर ले जाने का, आप इसे उठा लें वरना मैं इन्हें यहीं छोड़ जाऊंगी। उसके कतई लहजे पर वो जाते जाते फिर पलट कर आया। जैसे ही तुम्हारी मर्जी किरण, मैं तो अम्मी को बता दूंगा कि मेरे इतने इसरार पर भी किरण ने आपके भेजे तोहफे लेने से इनकार कर दिया। किरण उसके मुंह से अपना नाम सुनकर इतनी चौकन्नी हो गई थी कि यही नहीं सुन सकी कि वो क्या कहे जा रहा है। क्या मतलब? वो होंकों की तरह बोली। इसमें मतलब बताने वाली कौन सी बात है भाई? तुम्हारे इनकार से तो यही मतलब निकलता है ना कि अम्मी ने जो तोहफे तुम्हारे लिए भेजे थे वो तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात एक लम्हे को किरण के सर पर से गुजर गई, मगर जब समझ आई तो वो चीख उठी। आप
आप तुम्हें शायद हकलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं खुद ही बता दूं, मैं ही साजिद हूँ। कमाल करती हो तुम, मैं तो तुम्हें एक नज़र में पहचान गया था। साजिद उसकी हैरत से महसूस होते हुए बेंच पर बैठ गया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगा। वो यकीनन बहुत देर से उन्हें तलाश कर रहा होगा, तभी उसका हशर नशर बिगड़ गया था। मगर उसके मिजाज और सुकून में कोई फर्क नहीं आया और यह बात किरण के लिए कदरे अचंभे का बाइस थी। उसके जहन में साजिद का तस्वुर काफी मुख्तलिफ था। जिस तरह वो दादा जान के इसरार के बावजूद आने में टाल मटोल करता था, उसे देखने के बाद किरण उसे अपने आप में गुम कोई रूढ़ किस्म का शख्स समझती थी। मैं भला कैसे पहचान सकती थी, इतने सालों बाद मिले हैं आप। मैं भला कैसे पहचान सकती थी, इतने सालों बाद तो मिले हैं आप। बता देता तो तुम्हारा टेस्ट कैसे लेता, याददाश्त तो तुम्हारी जीरो निकली। लेकिन एक अजनबी का बैग लेने से इनकार कर दिया, इससे साबित होता है कि मुझसे दूर रहने के बावजूद मेरी सोहबत का थोड़ा असर बाकी है। साजिद उंगलियों से बाल संवारते हुए बोला, क्या मतलब? फिर वही क्या मतलब, लगता है हर बात में मतलब पूछने की बीमारी है तुम्हें। भाई मेरा मतलब है थोड़ी सी अक्लमंद हो, लेकिन इस अक्लमंदी के बावजूद वो तोहफे तुम्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम अपने पूरे होशो हवास में उनसे दस्तबरदार हुई हो। मैं क्या मर रही हूँ उन तोहफों के लिए? किरण चिढ़ गई उसकी बात से। तो क्या नहीं मर रही? चलो फिर ले लेना, वैसे भी मैं क्या करूंगा इन लेडीज कपड़ों का, और ये तुम अकेली आई हो क्या? बात करते करते अचानक साजिद को ख्याल आया था, जी नहीं, मैं भी उनके साथ हूँ। जिशान की आवाज पर दोनों ने चौंक कर सामने देखा। जिशान जाने कब साजिद के दोनों बैग से दरमियान आ खड़ा हुआ था। इस वक्त कोई ये बैग उठाकर चला भी जाता और तुम दोनों को कानो कान खबर ना होती, जिशान ने जले भुने अंदाज में कहा। 10 मिनट की आवारागर्दी में मजीद गर्दालूद हो गया था, चुनाचा लहजा भी वैसा ही था। चला जाता तो चला जाता, आप क्यों दिल जला रहे हैं? 15 दिन रह गए हैं शादी में, शक्ल बिगड़ गई तो भाभी ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर देंगी। वैसे भी मेरे आने से पहले ही खतरा बढ़ गया है, कहीं उनका इरादा बदल न जाए, साजिद ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। जिशान उसे मारने के लिए लपका और किरण से हंसी रोकना मुश्किल हो गया। साजिद सबसे इतने बेतकल्लुफ अंदाज में मिला था कि लग नहीं रहा था कि वो सबसे इतने सालों बाद मिल रहा है। उसकी ये बात सभी को बहुत अच्छी लगी थी और उसके इसी पुरतपाक अंदाज में मिलने की आदत के पेश नज़र किरण को दादा जान के साथ उसका रवैया कदरे स्पार्ट लगा था। हालांकि वो दादा जान के गले भी मिला था, उनकी खैरियत भी पूछी थी, उनके सवालों और गिलो शिकवों के जवाब भी दिए थे। फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा कुछ था जो किरण महसूस किए बगैर ना रह सकी, मगर उसके पास ज्यादा गहराई में जाने का वक्त नहीं था। जिशान की शादी क्या तय हुई थी, किरण का वक्त पर लगाकर उड़ने लगा था। घर के काम काज, शादी की शॉपिंग और मेहमानों की खातिर मदारत, वो तो जैसे घनचक्कर बन गई थी। हालांकि उसके पड़ोस में ही उसकी सगी खाला रहती थी, जिनकी एक बेटी और 2 बेटे थे। सबसे बड़ी हिना थी जो किरण से 1 साल छोटी थी, और उससे छोटे वासिफ और आमिर थे। वो तीनों भी अक्सर किरण के साथ लग जाते, तब भी काम की ज्यादती और वक्त की कमी का एहसास खत्म होने में नहीं आता। कमाल है, ये घर कहीं से भी शादी का घर नहीं लगता। वैसे तो कहने को घर में रिश्तेदारों की भरमार है, मगर सब नानी, खाला और मुमानियों पर मुश्तमिल बुजुर्ग खवातीन हैं। लड़कियां सिर्फ 2 ही हैं और बजाय ढोलक वगैरह बजाने के हर वक्त किचन में घुसी रहती हैं। साजिद ने चंद ही दिनों में किचन में मौजूद किरण और हिना को जा लिया। तो क्या करें साजिद भाई, काम खत्म ही नहीं होता। हिना बर्ता भूनते हुए बेबसी से मुस्कुराई, तभी जिशान किचन में चला आया। किरण, ये कैसी चाय बनाई है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से इतना दूध, चाय कम और लस्सी ज्यादा लग रही है, मुझे दूसरा कप बना दो। जिशान कप स्लेब पर रखते हुए बोला तो किरण फ्रिज में से सर निकालकर कुछ कहने ही वाली थी कि साजिद बोल पड़ा, जिशान भाई, वक्त बे वक्त चाय पीने का शौक कुछ कम करें, इन दोनों पर पहले ही काम का इतना बोझ है और ऊपर से आपके नखरे, आज इस बदमजा चाय पर गुजारा कर लें। साजिद के कहने पर जिशान हंस पड़ा, अरे चाय बनाने में कौन सा टाइम लगता है, किरण मेरे कमरे में भेज देना और जरा जल्दी। जिशान कहते हुए बाहर निकल गया। हिना बर्ता बाद में भून लेना, पहले जरा ये बर्तन धो दो, कितना किचन फैल रहा है। किरण ने सिंक पर प्यालियों का ढेर देखकर गहरा सांस खींचते हुए कहा, और उसका चेहरा गर्मी की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। सुबह से उसे बाल बनाने का वक्त भी नहीं मिला था। शाम को जोड़े बंधाई की रस्म थी, जिसके लिए रिश्तेदार अभी से जमा होना शुरू हो गए थे, जिन्हें चाय पिला पिलाकर बावर्ची खाने में बर्तनों का अंबार जमा हो गया था। हिना आंच हल्की करके बर्तनों की तरफ बढ़ी कि साजिद बोल पड़ा, 1 मिनट ठहरो हिना, मुझे इन बर्तनों की जरूरत है। साजिद की बात पर वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? किरण के मुंह से बेसाख्ता फिसला, मगर साजिद के घूरने पर गड़बड़ा कर बोली, आपको इन बर्तनों की क्या जरूरत है, मैं चाय बना रहा हूँ। साजिद ने कहने के साथ ही स्टैंड में से धुली हुई प्यालियां उठा ली और वहां पड़ी तमाम प्यालियों में बची हुई चाय को इस साफ कप में अंडेलने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? किरण हैरत से गोया हुई, जबकि साजिद ने प्यालियों से जमा करके एक पूरा चाय का कप तैयार कर लिया।
तुम क्यों आटा लिए खड़ी हो, जाओ जाकर रोटी पकाओ। साजिद इन ब्रेकेबल कप को माइक्रोवेव अवन में रखते हुए बोला, और जब चाय खातिर खा गर्म हो गई तो कप निकालकर तश्तरी में रखा और किरण की तरफ देखकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। आप भैया को ये चाय पिलाएंगे? किरण कराहियत से बोली। उनके म्यार पर यही चाय उतरेगी, साजिद यकीन से बोला। जी नहीं, मैं अपने भाई को हरगिज। बंद करो ये भाई भाई की रट, जरा जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। मेहमान जमा हो चुके हैं और तुम्हारा हुलिया हीरो के फ्राक में तड़पती पुरानी फिल्मों की हीरोइन जैसा हो रहा है। साजिद ने उसकी चुटिया में से निकल आने वाली लटों को देखते हुए कहा, जो पसीने की ज्यादती से माथे और गर्दन पर चिपक गई थी, और फिर इसकी एक भी सुने बगैर चाय लेकर जाकर जिशान को थमा दी। तुम लेकर आ रहे हो चाय? जिशान ने उसे हैरत से देखा। हाँ देखिए ना, घर आए मेहमान के साथ क्या सलूक हो रहा है, साजिद ने शिकायती अंदाज में कहा। किरण और हिना साजिद को रोक तो नहीं सकी थी, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर दरवाजे में से झांककर अंदर का मंजर देखने लगी। अच्छा, अब इतने मजबूर और बेबस हैं कि वो दोनों आपके साथ ये सलूक कर सके? जिशान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। आखिर वो किरण और हिना की रग रग से वाकिफ था और अब कुछ कुछ साजिद को भी समझने लगा था। हूँ तो नहीं, लेकिन कभी कभी जज्बा हमदर्दी के बाइस ऐसा बन जाता हूँ, साजिद ने बेजारगी से कहा, मगर जिशान मुत्तफिक न हुआ। लगता है दाल में कुछ काला है, जिशान ने चाय का तनकीदी जायजा लेते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हैं जिशान भाई, कभी चाय लस्सी लगती है और अब दाल है नहीं, लेकिन फिर भी आपको काला नजर आ रहा है। साजिद बोर होकर बोला। अच्छा चलो ऐसा करो, पहले ये चाय तुम खुद पीकर दिखाओ। जी। साजिद ने आंखें फैलाकर उसे देखा, जबकि किरण और हिना हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखने पर मजबूर हो गई। बस एक घूंट पीकर दिखा दो, फिर मैं पी लूंगा। साजिद अपने ही दाम में फंस गया था और फरार के लिए कोई राह सोचने लगा, और जिशान के समझने के लिए साजिद की कैफियत काफी ही नहीं बहुत ज्यादा थी। मुझे बनाना इतना आसान काम नहीं है बच्चे, जिशान ने मुस्कुराते हुए बच्चे पर जोर देते हुए कहा। साजिद उसे देखकर रह गया, जबकि किरण और हिना हंसती हुई वापस किचन की तरफ मुड़ गईं। रात को फुर्सत मिलने पर वो पांचों ड्राइंग रूम में बैठ गए। किरण और हिना ने आमिर और वासिफ को मजे लेकर साजिद का दोपहर वाला वाकया सुनाया तो वो दोनों हंस हंस कर दोहरे हो गए। वाकई साजिद भाई जिशान भाई को बनाना आसान नहीं है, आमिर ने हंसी की ज्यादती से निकल कर आने वाले आंसू पहुंचते हुए कहा। अच्छा बस बहुत हो गया, ये बताओ जिशान भाई कहाँ हैं? साजिद ने चिढ़कर कहा। वो सोने लेट गए हैं, किरण बोली। अभी से? साजिद ने हैरान होकर घड़ी देखी जो 10:30 बजा रही थी। वो तो 10 बजे ही लेट जाते हैं। वासिफ ने सोफे से उतरकर कारपेट पर आड़ा तिरछा लेटते हुए कहा। क्या बोर आदमी है जिशान भाई, बजाय रात को कोई हल्ला गुल्ला मचाने के जाकर सो गए। साजिद ने सर झटका। हल्ला गुल्ला? किरण ने हैरान होकर साजिद को देखा। वो कोई बच्चे हैं क्या जो हल्ला गुल्ला मचाएंगे? शादी हो रही है उनकी, किरण ने बताना जरूरी समझा। क्या जिंदगी एंजॉय करने का हक सिर्फ बच्चों के पास है? और शादी कोई बुढ़ापे में नहीं हो रही जो शादी होने पर जिंदा दिली दिखाना ममनू हो जाए। पता नहीं उनकी बीवी का क्या होगा, बेचारी। साजिद ने अफसोस से सर हिलाया। नाइला भाभी खुद भी बहुत मैच्योर हैं, हिना ने टुकड़ा लगाया। जब ही साजिद सीधा हो बैठा। बिल्कुल अपने मिजाज की लड़की ढूंढी है उन्होंने। जिशान भाई लड़की ढूंढेंगे, वो भी अपने लिए? वासिफ जोर से हंसा। किरण और हिना भी मुस्कुराने लगी। मैं समझा नहीं, साजिद ने सवालिया अंदाज में वासिफ को देखा। भैया के लिए लड़की अम्मी ने पसंद की है, भैया ने खालिस मशरकी रवायतों का पास करते हुए जो आप बेहतर समझे कहकर सर झुका दिया था। किरण खुशदिली से बोली। चल बे चल, आज के दौर में ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन ताई अम्मा ने इत्तेफाक से जिशान भैया की पसंद की लड़की को ही पसंद कर लिया होगा। साजिद यकीन से बोला। नहीं, हिना पुरसोच अंदाज में बोली। जिशान भाई ऐसे नहीं है। ये ऐसे से तुम्हारा क्या मतलब है? साजिद ने जुरा की। ऐसे से मतलब ऐसे नहीं है भाई। हिना मुश्किल में पड़ गई तो वो सब हंस दिए। अच्छा चलो आजमा कर देख लेते हैं। साजिद ने जैसे बात हालात पर छोड़ दी। कैसे? वो चारों फौरन मुतजस्सिस हो गए। बस देखते जाओ, साजिद ने कहा और जेब से अपना मोबाइल निकाल लिया। आपके इरादे क्या हैं? उसे मोबाइल में दूसरा चिप्स डालते देखकर वासिफ ने हैरानगी से पूछा, मगर साजिद ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और अपना पुराना चिप्स जेब में रखते हुए बोला। बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए और कोई हंसेगा भी नहीं। अगर जरा भी बात बिगड़ी तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बल्कि बोरिया बिस्तर समेटकर अपने घर लौट जाऊंगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो सब फौरन ही उसकी धमकी से मरूब हो गए। साजिद ने जिशान के मोबाइल का नंबर डायल किया और उसके फोन उठाने का इंतजार करने लगा। उसने स्पीकर ऑन कर दिया। उसके लिए घंटी की आवाज उन सबको बाखूबी सुनाई दे रही थी। चौथी घंटी पर जिशान ने कॉल रिसीव की। हेलो। वो अभी सोया नहीं था बल्कि कंप्यूटर पर मसरूफ था। हेलो हैंडसम, साजिद ने कमाल महारत से लड़की की आवाज निकालते हुए कहा तो वो चारों आंखें और मुंह फाड़े उसे देखने लगे। दूसरी तरफ जिशान भी इस आवाज और अंदाज पर ठुठक गया था। आपने किस नंबर पर फोन किया है?
ज़ीशान को यही एक सवाल पूछना आसान लगा, जिस नंबर पर लग जाए। साजिद ने किसी नखरीली लड़की की तरह इतला कर कहा। अब ज़ीशान के लिए ये समझ जाना हरगिज मुश्किल नहीं था कि दूसरी तरफ किस किस्म की लड़की मौजूद है। फिर तो आपने गलत नंबर लगा दिया है, किसी और पर ट्राई करें। ज़ीशान ने गहरा सांस खींचकर कहा और फोन बंद करने ही लगा था कि साजिद तेजी से बोला, प्लीज फोन बंद मत कीजिएगा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मुझसे बातें करें ना। एक संजीदा और रंजीदा लड़की की बोरियत दूर करना एन सवाब का काम है। साजिद इतनी महारत से बोल रहा था कि वो सब गंग बैठे थे। मुझे ऐसे सवाब की कोई जरूरत नहीं है। ज़ीशान की उकताई हुई आवाज सुनाई दी। क्यों, क्या आपको अपनी उनके फोन का इंतजार है? साजिद ने पूछा तो ज़ीशान चौंक उठा। जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मुझे ये भी पता है कि आपकी शादी हो रही है। साजिद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? दूसरी तरफ ज़ीशान उलझ कर बोला, यही कि आप ऑफिस 8 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे घर वापिस आते हैं, आपके पास ब्लू कलर की हैंडा स्विक्स है। साजिद ने शौक लहजे में कहा तो उन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि ज़ीशान हैरान होकर सोचने लगा कि उसके ऑफिस के आसपास इतने सारे ऑफिस थे, इतनी चहल पहल होती थी कि किसी एक की तरफ ध्यान जाना मुमकिन ही नहीं था। क्या आप भी वहां आती हैं? ज़ीशान ने खोजने वाले अंदाज में पूछा। जी, सिर्फ आपको देखने, साजिद ने अपने लहजे में ज़माने भर की सच्चाई भरते हुए कहा तो वासिफ और आमिर अपनी उबल पड़ने वाली हंसी को रोकने की कोशिश में हाल से बेहाल हो गए। मुझे देखने? ज़ीशान हैरत भरी उलझन से बोला। जी, तभी तो मैं आपको हैंडसम कह रही थी। आपकी पर्सनैलिटी इतनी डैशिंग है कि मैं आपकी फैन हो गई हूँ, वरना इससे पहले मैं सिर्फ अपनी फैन थी। मैंने आपको यही मशवरा देने के लिए फ़ोन किया था कि अगर आप मॉडलिंग में ट्राई कर लें तो दौलत और शोहरत आपके कदम चूमेगी और लड़कियों के दिलों पर बिजलियां गिर जाएंगी। लड़कियों के दिलों पर बिजलियां गिरें या ना गिरें, वो चारों हंसी रोकते हुए इधर उधर जरूर गिर गए थे। साजिद के तंबीही अंदाज में घूर कर देखने पर भी उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। मुझे लड़कियों के दिलों पर बिजलियां गिराने का कोई शौक नहीं है, ज़ीशान ने चिढ़कर कहा। लेकिन फिर लड़कियां आपकी दीवानी हो जाएंगी, आपको फोन करेंगी, आपकी तारीफ करेंगी। साजिद बड़े जोशो खरोश से बता रहा था। मुझे लड़कियों का फोन सुनने और अपनी तारीफें सुनने का भी कोई शौक नहीं है। ज़ीशान का लहजा बदस्तूर था। वाकई? साजिद ने मायनी खेजे अंदाज में कहा, फिर कदरे तंजिया लहजे में बोला, मिस्टर ज़ीशान, अगर आपको अपनी तारीफें सुनने का कोई शौक नहीं है तो फिर आप मेरी बकवास क्यों सुन रहे हैं? आप फोन बंद क्यों नहीं कर देते? साजिद के पूछने पर एक लम्हे के लिए ज़ीशान सटपटा गया। उसे वाकई फोन बंद करने का ख्याल नहीं आया था, हालांकि इसे असूली तौर पर बहुत पहले लाइन काट देनी चाहिए थी। फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? लम्हे के 1000वें हिस्से में ज़ीशान ने अपने आप से पूछा और जवाब ना पाकर जल्दी से फोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ उसका फोन बंद करते ही वो सब खुलकर हंस दिए। जिस तरह उसने फोन डिस्कनेक्ट किया था, उसे देखकर उसकी हवास बाख्ता कैफियत का बखूबी अंदाजा हो गया था। जवाब नहीं है साजिद भाई आपका, आमिर ने हंसते हुए दाद दी। हाँ, ज़ीशान भाई कितना घबरा गए थे लड़की की आवाज़ सुनकर। वासिफ से अभी भी हंसी नहीं रुक रही थी। मगर तुम सब इतना खीखी क्यों कर रहे थे? अगर आवाज़ चली जाती तो? साजिद ने मोबाइल की चिप्स चेंज करते हुए कहा। अब हंसी आ रही थी तो क्या करते? हिना बेचारगी से बोली। मजाक हमेशा पूरी संजीदगी के साथ करना चाहिए, साजिद ने नसीहत करना जरूरी समझा। आपकी सोहबत में रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंशाल्लाह, आमिर ने जल्दी से कहा तो साजिद ने उसकी पीठ ठोंक दी। मगर मुझे ये मजाक ज्यादा पसंद नहीं आया, किरण ने आहिस्तगी से कहा। अच्छा, इस वक्त तो ऐसे हंस रही थी जैसे दांत बाहर गिर जाएंगे, साजिद ने टोका। हंसी आना और बात है, लेकिन मुझे भैया के साथ ये हरकत पसंद नहीं आई, किरण ने वजाहत करते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ ये पता करना है कि ज़ीशान भाई की कितने फीसद मर्जी शामिल है इस शादी में। साजिद के मुस्कुराने पर किरण गहरा सांस खींच कर रह गई। अगले दिन जब साजिद ने दोबारा उस लड़की की आवाज में ज़ीशान को फोन मिलाया तो ज़ीशान ने उसका हेलो सुनते ही लाइन काट दी। फिर साजिद के 10 बार मिलाने पर भी मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा। साजिद 2 दिन तक तो कोशिश करता रहा, फिर किरण के सर हो गया। जरूर तुमने उन्हें बता दिया है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। किरण के तन बदन में आग लग गई ये सुनकर, क्योंकि उसने तो इशारे में भी भैया को कुछ बताने की कोशिश नहीं की थी। मैं क्यों बताऊंगी, मेरे भैया बहुत शरीफ इंसान हैं, वो ऐसी हरकतें नहीं करते, तुम्हारी तरह नहीं है। आखिरी जुमला किरण ने खास तौर पर साजिद को जलाने के लिए कहा था और हस्बे तवक्का वो कबाब हो गया। मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? अगर ज़ीशान भाई फोन पर बात नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं उनसे किसी और तरीके से भी उगलवा सकता हूँ। बल्कि अब तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि ये शादी हरगिज भी अरेंज मैरिज नहीं है, वरना इतनी खूबसूरत आवाज सुनकर भी। साजिद को कलामी के अंदाज में बोला। खूबसूरत आवाज? किरण ने आंखें फाड़कर उसे देखा। मैं अपनी असल आवाज की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की आवाज की बात कर रहा हूँ जिसकी मैं कॉपी कर रहा था।
साजिद ने दांत पीसे। हाँ फिर ठीक है, किरण ने शराफत से मानते हुए सर हिला दिया। साजिद ने उसके अंदाज पर ध्यान दिए बगैर मौजू बदलते हुए पूछा, ज़ीशान भाई की दुल्हन का जोड़ा लाल रंग का ही होगा ना? हाँ जाहिर बात है। किरण किचन से फारिग होकर अपने दुपट्टे पर बेल टांगने बैठी थी और साथ ही चाय पीती जा रही थी, इसलिए साजिद भी उसके पास चला आया। ज़ीशान अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। हिना, वासिफ और आमिर भी ट्यूशन से फारिग होकर शाम तक उनके घर आते थे। तुम्हारी कोई दोस्त ऐसी होगी जो तुम्हें अपनी शादी का इस्तेमाल शुदा जोड़ा दे सके? साजिद के सवाल पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। ऐसे मत देखो, सिर्फ एक दिन के लिए चाहिए, फिर उसे वापस कर देना। साजिद ने वजाहत की। आपके इरादे क्या हैं? किरण ने मशकूक अंदाज में कहा, क्योंकि जोड़े का इंतजाम करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। हर साइज और हर रंग का जोड़ा हासिल किया जा सकता था। उसके मशकूक अंदाज पर साजिद दिलचस्पी से मुस्कुरा दिया। ये मत पूछो, ये एक सरप्राइज है, और ये भी मत समझो कि अगर तुम नहीं दोगी तो मैं कहीं और से हासिल नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे अलावा भी मेरे कई वाकिफकार हैं जो मुझे जरूरत के वक्त हर चीज फराहम कर सकते हैं। उसके लापरवाह अंदाज में कहने पर किरण कुछ देर उसे देखती रही, फिर ठहर ठहर कर बोली, साजिद भाई, जब मैं आपसे आखिरी बार मिली थी तब आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। आप बहुत बदल गए हैं। पहले तो मुझे ये याद दिलाओ कि हम आखिरी बार कब मिले थे और मैं उस वक्त कितना बड़ा था और तुम कितनी छोटी थी? साजिद ने पूछा। वो तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन आप इतना बोलते नहीं थे। किरण ने संजीदगी से कहा, मगर वो बिल्कुल संजीदा ना हुआ, बल्कि बुरी तरह चौंकते हुए कहने लगा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोलने लगा हूँ? इसका मतलब है तुम बोर हो रही हो, क्योंकि जब कोई अच्छा बोल रहा होता है तो दिल चाहता है कि बस सुने जाओ, लेकिन जब कोई बकवास कर रहा हो तब अंदाजा होता है, उफ ये कितना बोलता है। वो कहता चला गया। बात को टालने की कोशिश मत करें, सच बताएं, क्या आपको कोई मसला दरपेश है? किरण ने पूछा। मसला? और मुझे? साजिद हैरान होता हुआ ऐन उसके सामने आ बैठा। क्या तुम्हें मेरी शक्ल से ऐसा लगता है कि मुझे कोई मसला दरपेश हो सकता है? लगता तो नहीं, मगर मैंने सुना है कि जिनके अंदर बहुत सन्नाटा होता है वो अपने आसपास बहुत शोरगुल मचाए रखते हैं, ताकि कोई उनके अंदर के खालीपन को महसूस ना कर सके। किरण ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए साजिद की आंखों में हैरानी फैल गई, जैसे उसे किरण से ऐसी बात की तवक्का ना हो, मगर ऐसा बस एक लम्हे के लिए हुआ था, क्योंकि अगले ही पल वो हंसने लगा था। कितनी मुश्किल मुश्किल बातें करने लगी हो तुम। अंदर का सन्नाटा, ये किस चिड़िया का नाम है? किस चीज के अंदर होता है ये सन्नाटा? साजिद ने कॉलर आगे करके अपनी शर्ट के अंदर झांका और फिर सर उठाकर कहने लगा, यार कजन, मेरे सामने जरा फलसफे से परहेज किया करो, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। अच्छा तुम अपना काम करो, मैं ताई अम्मी के पास जा रहा हूँ, और हाँ जोड़े का इंतजाम करना मत भूलना। कपड़ा और काम चाहे जैसा भी हो, जोड़े का रंग बिल्कुल भाभी के सूट जैसा होना चाहिए। साजिद कहता हुआ कमरे से निकल गया और किरण कितनी देर तक उसके बारे में सोचती रही। मेहंदी से एक दिन पहले साजिद के वालिदैन भी आ रहे थे। चचा जान का बिजनेस बहुत वसी था और वो इसे नौकरों पर छोड़कर ज्यादा दिन के लिए नहीं आ सकते थे, इसीलिए वक्त के वक्त आ रहे थे। वो लोग शाम की फ्लाइट से घर पहुंचने वाले थे और सुबह में ज़ीशान भाई की ससुराल ने जहेज के नाम पर ट्रक भरकर सामान उनके घर पहुंचा दिया। इतना सामान देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इतने सामान को वो घर में कहाँ खपाएगी, ये सोचकर ही उसे बुखार चढ़ने लगा था। भले ही फर्नीचर मजदूरों को सेट करना था, मगर वो भी किरण की हिदायत के मुताबिक तरतीब दे सकते थे, और वो ये सब शाम को चचा चची और दीगर रिश्तेदारों के आने से पहले समेट देना चाहती थी, मगर ये सब अकेले करना उसके बस से बाहर था। ज़ीशान ऑफिस गया हुआ था। उसका शादी के बाद सैरो सियाहत का प्रोग्राम था और वो छुट्टियां इन दिनों के लिए बचा कर रखना चाहता था, इसीलिए उसकी छुट्टियां कल से शुरू होने वाली थीं। अब्बू और दादा जान भी ऑफिस गए हुए थे। इन दोनों का तो सिरे से छुट्टी लेने का कोई इरादा ही नहीं था। हिना, वासिफ और आमिर भी कॉलेज और स्कूल से फारिग होने के बाद ही आ सकते थे। बस एक वही थी, बीए के पेपर्स देकर बज़ाहिर हर मजे की जिंदगी गुजार रही थी, जबकि हकीकतन सारी जिम्मेदारी अचानक अपने ऊपर आ जाने से हड़बड़ाई हुई, क्योंकि इम्तिहान खत्म होते ही सारे काम उसके जिम्मे लग गए थे, इस जुमले के साथ कि तुम्हें काम ही क्या है, फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन मजदूरों को देखकर अम्मी ने अपना पसंदीदा जुमला बोलने के बजाय साजिद को उठा देने का मशवरा दिया था, मगर उसे इस तरह के काम के लिए साजिद को जगाना ठीक नहीं लग रहा था। मगर मजदूर जिस तरह ज़ीशान भाई के कमरे के पुराने फर्नीचर को बेदर्दी से निकाल रहे थे, वो बेतरतीबी किरण की बर्दाश्त से बाहर थी। अम्मी खुद मशवरा कम और हुक्म ज्यादा देकर नहाने चली गई, तब मजबूरन वो गेस्ट रूम का दरवाजा खोलती साजिद के सर पर पहुंच गई। करीब था वो मजदूरों पर आया गुस्सा उस पर निकालते हुए उसके इतनी देर तक सोने पर चीख पड़ती, मगर उस पर नजर पड़ते ही उसकी सारी झंझलाहट हवा निकले गुब्बारे की तरह बैठ गई। उसका तेजी से खुलता मुंह आहिस्तगी से बंद होता चला गया। वो सीने के बल बिस्तर पर लेटा बहुत गहरी नींद सो रहा था। उसके बाल बेतरतीबी से पेशानी पर बिखरे पड़े थे और शौक तासुरात हर वक्त उसके चेहरे का अहाता किए रहते थे। वो इस वक्त उसके चेहरे से गायब थे और यकीनी तौर पर उसके चेहरे को इतना सादा और खूबरू बना गए थे कि लग नहीं रहा था कि उसने जिंदगी में कभी कोई शरारत की होगी। किरण गैर इरादी तौर पर उसे देखती रही कि बाहर किसी मजदूर के अलमारी खिसकाने की आवाज पर चौंकते हुए उसे पुकारने लगी।
वो इतनी गहरी नींद में था कि किरण के कई बार पुकारने पर उसने बामुश्किल नींद से भरी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था। किरण को उम्मीद थी कि वो ये सुनकर वापस सोने लेट जाएगा कि वो उसे मजदूरों के साथ जाकर काम करने के लिए जगा रही है, मगर वो तो इसकी बात सुनते ही बिस्तर से उठ बैठा। तो गोया जहेज के नाम पर ट्रक भरकर सामान आ ही गया। वो आंखें मलते हुए अजीब से अंदाज में बोला, हाँ, भाभी के घर वालों ने पूरा बाजार भेज दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि सारा सामान कहाँ रखा जाए। पता नहीं क्या जरूरत थी इतना कुछ देने की, घर में हर चीज तो मौजूद है। किरण कोफ्त और थकन की मिली जुली कैफियत में बोली तो साजिद उसकी शक्ल देखने लगा। घर आई लक्ष्मी के लिए ऐसा बोल रही हो? अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में बहुत कुछ है, और अल्लाह के लिए मेरे सामने पड़ोसियों की लैंग्वेज बोलने की जरूरत नहीं। किरण फौरन बोली, मैं तो सिर्फ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तुम तो उनके तरीके पर चल रही हो। जहेज लेना और देना हिंदुआनी रस्म है, इस्लाम में तो ऐसा कोई तस्वुर नहीं। साजिद बिस्तर से उतरते हुए बोला, अब उन्होंने सामान भेज दिया है तो क्या उठाकर घर से बाहर फेंक दें? आप प्लीज जल्दी उठें, शाम को आपके अम्मी अबू भी आ रहे हैं। किरण पर फिर झंझलाहट सवार होने लगी, और वो दोनों बाई प्लेन आ रहे हैं, कम अज कम उन्हें रिसीव करने वक्त पर ही जाना होगा। साजिद ने बाथरूम की तरफ जाते हुए याद दहानी कराई, अच्छा ही है, आपको भी इतनी गर्मी में उनकी तरह बाई प्लेन ही आना चाहिए था। किरण बिस्तर की चादर ठीक करते हुए बोली, उनके पास पैसा है, लिहाजा वो महंगा टिकट लेकर आ रहे हैं। मैंने पार्ट टाइम जॉब से टिकट खरीदा था, मैं कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ प्लेन का टिकट। वो उंगलियों से बाल संवारते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। क्या मतलब? भाई उनका पैसा आपका भी तो है। किरण बिस्तर ठीक करते करते रुक गई, और उसके सवाल पर साजिद ने ऐसी आंखें मींची जैसे ये कहने पर खुद को सरजनिश कर रहा हो, इसलिए दरवाजा खोलते हुए उसने किरण के सवाल को यकसर नजरअंदाज कर दिया। लगता है क्या मतलब है कहना, तुम्हारा तकिया कलाम है। उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वो कमरे से निकल गया। शादी की मसरूफियात में पता भी नहीं चला कि वक्त कहाँ और कब गुजर गया, और शादी का दिन आन पहुंचा। शादी के जोड़े का बंदोबस्त तो किरण ने कर दिया, मगर वो अभी तक उलझी हुई थी कि साजिद इस जोड़े का क्या करेगा। और जब उसकी ये उलझन दूर हुई तब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा था। उन चारों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि साजिद बिल्कुल आखिरी लम्हे में जब वो दुल्हन रुखसत कराकर घर ले आए, तब साजिद किरण से भाभी को दूसरे कमरे में आराम के बहाने भेज देने को कहेगा। तब तो किरण किसी तौर ना मानी, लेकिन जब साजिद ने बहुत मजबूर किया तब बादल नखास्ता वो भाभी को अपने कमरे में ले आई। भाभी आप कुछ देर आराम कर लें, फिर आपको आपके कमरे में ले जाऊंगी। किरण अपनी इतनी प्यारी सी भाभी से झूठ बोलने पर सख्त शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। थैंक्स किरण, मैं खुद भी यही चाह रही थी। नाइला आहिस्तगी से बोली, तो आपने कहा क्यों नहीं? आप मुझसे तकल्लुफ बरत रही थी। किरण के सर से बोझ उतर गया। थोड़ी देर बाद जब वो वहां से निकली तो हिना बाहर ही खड़ी थी और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। किरण, साजिद भाई ने हम दोनों को जीशान भाई के कमरे में बुलाया है। उसे देखते ही हिना फौरन बोली, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? किरण ने हैरानी से पूछा। वासिर और आमिर उनके कमरे में छुपे हुए हैं, और साजिद भाई नाइला भाभी की जगह दुल्हन बनकर बैठ गए हैं। क्या? आहिस्ता बोलो, वो सख्ती से मना करके गए हैं कि इस बारे में जिशान भाई को कोई कुछ नहीं बताएगा। हिना ने घबरा कर कहा, जबकि किरण हत्थे से उखड़ गई। वो हरगिज इस मजाक में शामिल नहीं होना चाहती थी, और जिशान भाई के कमरे में जाने की हिम्मत तो हिना में भी नहीं थी। वो दोनों जिशान को सब बता देना चाहती थी, मगर जब वो जिशान भाई की तलाश में निकली तब अम्मी से पता चला कि वो तो अपने कमरे में जा चुका है। वो दोनों सफेद पड़ती रंगत के साथ एक दूसरे को देख कर रह गई। जिशान अपने कमरे में कदम रखते ही ठिठक गया। उसकी रोशनियों में नहाए कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थीं, बस 0 पावर का एक बल्ब ऑन था। दूसरा झटका उसे दुल्हन को देखकर लगा, जिसका घूंघट घुटनों को छू रहा था। शक्ल तो क्या, उसके हाथ पांव यहाँ तक कि गरारा तक नहीं नजर आ रहा था। बस पूरे वजूद पर दुपट्टा ही फैला हुआ था। जिशान हैरतज़दा सा चलता हुआ उसके सामने आ बैठा और सलाम के बाद कहने लगा, आपने अपने आप को इस कदर छुपा क्यों रखा है? जिशान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या करेंगे देखकर? जब शादी से पहले देखने की जरूरत नहीं समझी तो अब भी क्या जरूरत है? हम तो अम्मा की पसंद हैं, अम्मा ही के साथ जिंदगी जीनी है। आपको हमसे क्या सरोकार? दुल्हन तो जैसे उधार खाए बैठी थी। निशान उसके नरूठेपन से कहे जुमलों पर हैरत से गंग रह गया। जी? निशान को समझ में न आया कि उससे क्या कहे। आप तो नाराज लग रही हैं। हालांकि मैंने आपको देखने पर इसरार इसलिए नहीं किया कि जब अम्मी ने आपको पसंद कर लिया तो यकीनन आप अच्छी ही होंगी। क्या आपको मेरे इस फेल से तकलीफ पहुंची? हालांकि आपने कौन सा मुझे देखा था? जिशान कहता चला गया। साजिद को यह सुनकर बोरियत हो गई थी। गोया किरण की बात सच थी। वो तो कोई दिलचस्प कहानी सुनने के मूड में था, इसीलिए अपनी बोरियत दूर करने के लिए कहने लगा, मैं तो आपको देख चुकी हूँ। कब? जिशान चौंका। रोज देखती हूँ, आपको बताया भी था, मगर आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मैं तैयार नहीं हुआ? जिशान को यकीन ही नहीं आया। बड़े ही वो हैं आप, अभी तक समझे ही नहीं। मैं वही तो हूँ जो आपको फोन करती थी। निशान को जैसे शौक लगा था, वो होंठ बेचे इस गठड़ी को देखने लगा जो सिचुएशन के लिहाज से उसकी दुल्हन थी।
इस वक्त तो आपने फोन बंद कर दिया, मगर अब आप मेरी बात रद्द नहीं कर सकते। आपको लड़कियों के दिलों पर बिजलियां गिराने के लिए मॉडलिंग। साजिद का जुमला उसके मुंह में ही रह गया। वासिफ और आमिर जाने कैसे अब तक अपनी हंसी रोके हुए थे, आखिर उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और बिस्तर के नीचे से हंसी की घुटी घुटी आवाजें सुनाई देने लगी। ये कौन हंस रहा है? ज़ीशान ने होंकों की तरह कहा तो साजिद दांत पीस कर रह गया, मगर जल्दी से कहने लगा, मैं हंस रही हूँ। तुम? ज़ीशान ने चौंक कर कहा तो हल्की हल्की बातचीत की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। शायद वासिफ हंस पड़ा था और आमिर इस हरकत पर उसे डांट रहा था। साजिद का दिल चाहा अपना सर पीट ले या फिर खुद इतना कुछ बोलने लगे कि उसकी आवाज़ दब जाए। उसने कुछ कहना चाहा, मगर ज़ीशान को अब शक हो गया था। वो एक झटके से बिस्तर से उठा और चादर उठाकर नीचे झांकने लगा। वासिफ और आमिर पकड़े जाने पर घबराकर फौरन ही बिस्तर की दूसरी तरफ से बाहर निकल आए। तुम 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 मेरे कमरे में? ज़ीशान हैरत और गुस्से की शिद्दत से बोल भी नहीं पाया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों इस हद तक जा सकते हैं। भैया, वासिफ उसका लाल भभूका चेहरा देखकर हकनाने लगा। क्या है ये सब? और कौन कौन छुपा हुआ है इस कमरे में? ज़ीशान गुस्से से चीखा। कोई नहीं, आमिर ने थूक निकलते हुए कहा, क्योंकि ज़ीशान बिस्तर से घूमकर उनकी जानिब भाग गया था। वो उसके तेवर देखकर पीछे हटते हटते दीवार से जा लगे थे। इससे पहले कि उसका जोरदार हाथ उठता, दुल्हन को बिस्तर से खिसकता देखकर पहले तो वो चौंका, मगर जब दुल्हन को फरार होने के लिए तैयार देखा तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, साजिद कहाँ है? पता नहीं, हमें क्या मालूम? वासिफ बुरी तरह बुखला कर बोला, मगर उसका जवाब सुनने से पहले ही ज़ीशान ने दुल्हन की तरफ घूमते हुए कहा, साजिद, इज दैट यू? साजिद के होश उड़ गए थे। ये तो उसे मालूम था कि एक वक्त आएगा जब उसके ड्रामे का ड्रॉप सीन होगा, मगर अब वो वक्त आया तो साजिद सामना करने की बजाय भागने के लिए पर तोड़ने लगा, मगर एक्टिंग से तब भी बाज ना आया। हाय हाय, क्या कह रहे हैं आप? कहाँ फंस गई मैं? पता नहीं कैसा शोहर मिल गया, अल्लाह रहम करे। और कैसे बेशरम देवर हैं, कहाँ जाऊं मैं बेचारी? साजिद के वावेला मचाने की ज़ीशान ने जरा परवाह नहीं की, बल्कि उसे बेड से उतरता देखकर उसके दुपट्टे का एक कोना पकड़ लिया। साजिद बिस्तर से तकरीबन उतर चुका था। ज़ीशान के झुककर पल्लू पकड़कर खींचने पर साजिद ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया। वो किसी तौर अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार नहीं था और साथ ही बैन भी करता जा रहा था। हाय हाय, कैसा जालिम शोहर मिला है, ना महरम देवरों के सामने मेरा दुपट्टा खींचना चाहता है। साजिद को अब खुद भी इस तमाशे पर हंसी आने लगी थी। हालांकि वासिफ और आमिर बदस्तूर दीवार से लगे थर थर कांप रहे थे, मगर बोलते बोलते अचानक साजिद को याद आया, ये दुपट्टा तो किसी की अमानत है। इसलिए पूरी कुव्वत लगाकर खींचते खींचते एकदम उसके हाथ ढीले पड़ गए और दुपट्टा ज़ीशान के हाथों में चला गया। क्योंकि वो भी दूसरी जानिब से पूरा जोर लगाकर खींच रहा था, इसलिए साजिद को छोड़ते ही वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और पीछे गिर गया। हाय अल्लाह, मजाजी खुदा लुढ़क गए। आप खैरियत से तो हैं सरताज? साजिद ने हंसते हुए कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलना ही चाहता था कि दरवाजे से कान लगाए किरण और उसके पीछे हिना एकदम दरवाजा खुलने पर अंदर आ गिरी। अगर साजिद एक तरफ ना हट जाता वो दोनों उसके ऊपर गिरती। वो बेचारी तो अभी अभी कमरे के दरवाजे पर आई थी और अंदर से बुलंद होते शोर को समझने के लिए कान लगाकर खड़ी हुई थी कि दरवाजा खुल गया। भैया, मैं ये पूछने आई थी कि आप कल कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएंगे? किरण के जो मुंह में आया कह गई, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने कल छुट्टी ले रखी है। ज़ीशान गुस्से से दौड़ा। साजिद कमरे से जा भी चुका था। किरण और हिना भी बाहर को दौड़ गईं। वासिफ और आमिर उसके पीछे ही खड़े थे, मगर उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया और वो इन तीनों के पीछे कमरे से निकल गया। ज़ीशान का इरादा उनकी शिकायत करने का नहीं था, मगर उसका कमरा दादाजान के कमरे के बराबर में ही था। दौड़ते भागते कदमों की आवाज़ पर पापा बाहर निकल आए थे और उनसे पूछने पर ज़ीशान झूठ ना बोल सका। उसके वालिदैन और चचा चची भी इस वक्त दादाजान के कमरे में मौजूद थे। ज़ीशान के बताने पर उन सबको ही खबर हो गई, जिस पर साजिद की अम्मी अब्बू तो अच्छा खासा तैश में आ गए और उसकी क्लास लेने के लिए फौरन उसे तलब किया गया, मगर वो रुकने की हमाकत क्यों करता, लिहाजा वो तो नहीं मिला। अलबत्ता किरण और हिना की शामत आ गई, क्योंकि वासिफ और आमिर भी कहीं गायब हो गए थे। वो लाख कस्में खाती रहीं कि उनका कोई कसूर नहीं, मगर बुजुर्गों ने एक न सुनी और सवाए साजिद के अम्मी अब्बू के सब ने ही उन्हें अच्छी खासी झाड़ पिला दी थी। ये खूब रही, यानी कि हम उनके प्लान के खिलाफ थे, फिर भी सिर्फ हमें डांट पड़ी, और वो भी फर्दन फर्दन सबसे पड़ी। हिना दादाजान के कमरे से निकलकर गुस्से से पांव पटक कर बोली। किरण का भी गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, जो बड़ों पर तो निकल नहीं सकता था, अलबत्ता हिना पर चलाकर वो अपनी कुछ फ्रस्ट्रेशन निकाल सकती थी। लेकिन तुमने भी बजाय उनके खिलाफ कुछ कहने के उल्टा मुझे फंसा दिया। ये कहकर मुझे तो कुछ नहीं पता, शायद किरण को इल्म होगा इनकी शरारत का। तुम्ही ने तो शादी का जोड़ा दिया था साजिद भाई को। मैंने सोचा अगर ये बात खुल गई तो फिर तो हमारी पटाई पक्की। हिना ने सफाई दी। हाँ, गलती तो मेरी ही है, मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था, जब उन्होंने जोड़ा देखकर कहा था कि ये तो बहुत छोटा है, खैर दुपट्टा बहुत बड़ा है, मैं खाली इसी से काम चला लूंगा। किरण चटक कर बड़बड़ाई, तभी ज़ीशान उसके करीब चला आया। बहन हो मेरी और साथ दे रही थी साजिद का। बंदा चीज ही ऐसी है। साजिद अचानक बाहर लॉन में खुलने वाली खिड़की में नमूदार होकर बोला, और इससे पहले कि किरण कुछ कहती ज़ीशान ने उसे जा लिया। कहाँ भाग गए थे तुम?
भागा तो नहीं था, लॉन में छुप गया था और दादा जान के कमरे की खिड़की से लगा इन दोनों को डांट पड़ते सुन रहा था और खुश हो रहा था। साजिद ढिठाई से मुस्कुराया। तुम? आपके पास मुझे डांटने का वक्त नहीं है। आधी रात हो रही है, क्या सोच रही होंगी भाभी आपके बारे में? कैसा दूल्हा है, मेरे सामने आने से डर रहा है। साजिद ने तेजी से जीशान की बात काटते हुए कहा तो वो शायद दिल ही दिल में साजिद की बात का कायल हो गया था। तभी जुबान से कुछ कहे बगैर उसे कहर बरसाती नजरों से घूरते हुए बोला, मुझे बाद में भी घूरा जा सकता है, अभी आपके पास वक्त नहीं है। साजिद ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। जिशान ने उंगली उठाते हुए धमकाने वाले अंदाज में कहा तो साजिद दिल खोलकर हंस पड़ा और हंसता ही चला गया। तो क्या आपको लड़की की आवाज निकालनी आती है? साजिद बिल्कुल उसी लड़की की आवाज में बोला जिसकी आवाज में उसने जिशान को फोन किया था। जिशान ने पहले तो लब भींच लिया, फिर एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए लड़की की आवाज निकालने की जरूरत नहीं, बल्कि और भी कई तरीके हैं। अरे जाएं जाएं, मैं आपकी तरह बगैर देखे बगैर मिले किसी लड़के से शादी थोड़ी कर लूंगा। बल्कि एक्सक्यूज मी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे खानदान में सारी शादियां दादा जान तय करते हैं और लड़के और लड़की को पता भी नहीं होता कि उसकी शादी किसके साथ हो रही है। निशान ने हंसते हुए साजिद की बात काट दी, जबकि साजिद की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। मेरी शादी दादा जान तय नहीं करेंगे। उन्होंने कई गलत फैसले किए हैं, मैं अपनी जिंदगी को किसी गलत फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। साजिद के जुमले से ज्यादा उसके लहजे में छुपी तलखी पर किरण ने चौंक कर उसे देखा था। अच्छा, कौन से गलत फैसले कर लिए दादा जान ने? जिशान ने उसके लबो लहजे की शिद्दत को महसूस नहीं किया था, तभी हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, जबकि उसने फौरन अपनी जोन में लौटते हुए तेजी से कहा, भाई आप क्यों यहाँ खड़े खड़े अपना वक्त जाया कर रहे हैं? भाभी सोच रही होंगी कि हम आपको आने नहीं दे रहे, खुद गर्द ससुराली। साजिद के कहने के साथ ही उसका रुख कमरे की जानिब घुमाकर उसे धक्का दिया तो हिना हंसने लगी। वो थोड़ी देर पहले पड़ी डांट भूल चुकी थी, मगर किरण मुस्कुरा भी न सकी। उसका जहन एक ही नुक्ते पर आकर ठहर गया था कि आखिर साजिद दादा जान के जिक्र पर इतना तलख क्यों हो गया? क्या वो दादा जान की किसी बात पर नाराज है? मगर ये कैसी नाराजगी है जिसका वो इजहार नहीं करता, जो सिर्फ उसके रवैये से जाहिर होती है, बल्कि सिर्फ वही महसूस करती है, वरना और किसी पर तो कुछ जाहिर नहीं होता। वलीमे की तकरीब निहायत खुशउस्लूबी से इंजाम पा गई तो शादी के हंगामे जो मेहंदी के बाद ही सर्द पड़ गए थे बिल्कुल ही खत्म हो गए। चचा जान और चची ने अगले ही दिन वापसी का ऐलान कर दिया तो उनके जाने के ख्याल से ही किरण को घर सूना सूना लगने लगा और इस बात का इजहार उसने नाश्ते की मेज पर चची जान के सामने भी कर दिया जो शाम की फ्लाइट से जा रही थी। अरे अब हमारी क्या जरूरत, अब तो तुम्हारी भाभी आ गई हैं, घर सूना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चची जान हंसकर बोली, चची जान हम भी कुछ दिनों में मरी और सफात की तरफ निकल जाएंगे। जीशान ने मुस्कुराते हुए नाइला की तरफ देखा, तो क्या फिर मैं तो बोर होंगी और साजिद भाई तो आए भी कितने साल बाद हैं, मगर वो भी कल सुबह की ट्रेन से जा रहे हैं, उन्हें जब आपके साथ जाना ही नहीं है तो कुछ दिन बाद चले जाएं। किरण भाई भाभी के जाने के ख्याल से मजीद फिक्रमंदी से बोली। उसने शिकायती अंदाज में चाय पीते साजिद को देखा जो उसके ऐन सामने बैठा था। नो वे, मेरी पढ़ाई का तो पहले ही बहुत हर्ज हो रहा है। साजिद ने साफ इनकार कर दिया। पढ़ाई का तो बहाना है, वरना अभी भी आना नहीं चाहते थे। दादा जान ने अचानक अखबार चेहरे के सामने से हटाते हुए उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस। चाचा जान ऐसे घबरा कर बोले कि किरण ठुटक कर उनके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश करने लगी। हाँ साजिद, तुम तो कुछ दिन और रुक सकते हो, चाचा जान को बिजनेस देखना है, इसलिए चची जान का जाना भी जरूरी है, मगर तुम्हें ऐसी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हें कहीं घुमाया भी नहीं। दिशान ने भी इसरार किया। आप तो कुछ ना ही बोलें तो बेहतर है। भला भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? कबाब में हड्डी बनने का मुझे कोई शौक नहीं और आपको कौन सा मेरे जाने पर बोर होना है। हाँ किरण, तुम तो एग्जाम से फारिग हो चुकी हो, तुम खुद चलो मेरे साथ। साजिद ने प्याली पीठ में रखते हुए फराग दलाना ऑफर की तो दादा जान एकदम हंस दिए। किरण जो साजिद की पेशकश पर कुछ कहने ही जा रही थी, दादा जान की हंसी की वजह ना समझते हुए गर्दन घुमाकर उन्हें देखने लगी और बजाय इसके कि उनके चेहरे से कुछ अखज़ करती, बाकी सबके चेहरों पर फैली पुरस्रार मुस्कुराहट पर ठिठक गई। साजिद जो मजे से टोस्ट पर मक्खन लगाने लगा था, किरण को ठुठकता देखकर उसकी नजरों के ताक़ुब में सबको देखने लगा। बिल आखिर उसकी नजरें दादा जान के चेहरे पर आकर रुक गई, जो उसे ही देखते हुए ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे उसकी बात पर अभी तक महजूज हो रहे हों। किरण तुम्हारे साथ जरूर जाएगी, मगर उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। दादा जान के मायने खेज अंदाज पर किरण बेख्तियार साजिद को देखने लगी। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी कि सबके चेहरों पर खिलती मुस्कुराहट और दादा जान के जुमलों का पसे मंजर ना समझ पाती, मगर इससे पहले कि वो किसी रद्द अमल से गुजरती, उसकी नजरें साजिद का रद्द अमल जानने के लिए उसकी तरफ उठ गई थी। वो बिल्कुल सपाट अंदाज में दादा जान को देख रहा था, जो अपनी बात कहकर अखबार आगे कर चुके थे। वो यकीनन उनकी बात का मतलब समझ गया होगा, मगर उसका रद्द-ए-अमल नाकाबिले फहम था। खुशी, हैरत या परेशानी की बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। दादा जान पर से नजरें हटाकर उसने गालबन गैर इरादी तौर पर ही किरण की जानिब देखा था, लेकिन उसे अपनी तरफ देखता पाकर वहीं रुक गया।
हाँ हाँ, ज़ीशान जो किरण के बराबर में ही विराजमान था जोर से खुंकारा तो किरण चौंकने के साथ अच्छी खासी शर्मिंदा भी हो गई। पता नहीं भैया क्या समझे होंगे। उसी वक्त अम्मी ने उसे किचन से पुकारा तो गोया उसे उठने का बहाना मिल गया और फिर वो जानबूझकर किचन से इतनी देर में निकली कि सब नाश्ते की मेज से उठ गए। वो आकर नाश्ते के बर्तन समेटने लगी मगर साजिद की कुर्सी के सामने आकर हकीकतन उलझ गई। वो टोस्ट जिस पर वो मक्खन लगा रहा था वैसे का वैसे ही पड़ा था, बल्कि कप में चाय भी आधी से ज्यादा बच गई थी। उन सबके जाने के बाद 2 दिन बाद ही ज़ीशान भाई और भाभी भी 20 दिन के टूर पर चले गए। किरण पहले ही सख्त बोरियत महसूस कर रही थी, उनके जाने के बाद तो उसका दिल और भी घबराने लगा। सबसे ज्यादा उसे साजिद का ख्याल आता था। वो सिर्फ 3 हफ्ते यहाँ रहा था मगर इस मुख्तसर वक्त में भी उसकी जात हर चीज पर हावी हो गई थी, इसीलिए उसकी कमी भी शिद्दत से महसूस हो रही थी। इसलिए किरण ने अपना ध्यान बटाने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया और जब उसने अम्मी पापा को अपने फैसले से आगाह किया तो वो दोनों फौरन ही तैयार हो गए। मगर साथ ही बाबा की बात उसे उलझा भी गई। मेरे ख्याल से मुझे एक बार एहसान चचा जान से भी पूछ लेना चाहिए। इस वक्त तो किरण कुछ ना बोली मगर मौका मिलते ही उसने अम्मी से इस जुमले की वजाहत मांग ली। असल में तकरीबन बचपन से तुम्हारी और साजिद की बात तय है, हालांकि कभी बकायदा कोई रस्म नहीं की मगर फैसला बहुत पहले से कर रखा है। तुम्हारे दादा जान ने तो तुम्हारे पैदा होते ही कह दिया था कि हमारे साजिद की दुल्हन आ गई। अम्मी उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए खुशी खुशी बताने लगी। असूली तौर पर तो उसे बहुत खुश हो जाना चाहिए था मगर वो खुद नहीं जानती थी कि वो खुश होने के बजाय फिक्रमंद क्यों हो गई। लेकिन आपने पहले कभी बताया नहीं, किरण ने उलझकर पूछा। मैंने कहा ना, ये फैसला तुम्हारे दादा जान ने किया था, वरना मैं तो बचपन में रिश्ता करने की कायल नहीं, बल्कि अगर वालदेन का ऐसा कोई इरादा हो भी तो बच्चों के सामने ऐसी बातें करने से गुरेज करना चाहिए, वरना बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। इसलिए मैंने कभी तुम्हारे सामने जिक्र नहीं किया। मगर अभी जिशान की शादी पर तुम्हारे चचा चची ने बहुत इसरार किया कि कोई रस्म कर ली जाए, जिस पर तुम्हारे दादा जान ने कहा साजिद का बीकॉम मुकम्मल हो जाए तो डायरेक्ट शादी कर देंगे। उसके एग्जाम्स होने ही वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की तो बात है। उसे कौन सा जॉब ढूंढने के लिए जूते घिसाने हैं। तुम्हारे चचा का इतना बड़ा बिजनेस है, आखिर वो भी कब तक अकेले बिजनेस देखेंगे। अम्मी अपने आप में मगन कहती चली गई, जबकि किरण अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही हो। साजिद के अल्फाज भी बार बार उसके जहन में गूंजने लगते। मेरी शादी दादा जान तय नहीं करेंगे, उन्होंने कई गलत फैसले किए हैं, मैं अपनी जिंदगी को किसी गलत फैसले की भेड़ नहीं चढ़ने दूंगा। किरण ने सर झटक जो होगा देखा जाएगी की तसल्ली देने की बहुत कोशिश की और यूनिवर्सिटी के फॉर्म मंगवाने का सोचने लगी। आमिर और वासिफ में से कोई भी फॉर्म ला देता मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। अम्मी ने उसे बताया कि उसके चचा एहसान अहमद की बात उसके दादा जान से हो गई है। इस साल के आखिर तक उसकी शादी होना करार पाई थी, इसलिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। फौरी तौर पर इस खबर ने उसे कोई खुशी नहीं दी थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आया ये फैसला साजिद की रजामंदी से हुआ है या वो मजबूर हो गया है। अपनी इस सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दी थी। अब वो इतना भी बेबस नहीं कि कोई उसे मजबूर कर दे और वो मजबूर हो जाए। ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है। हिना की अचानक मुदाखलत पर वो हड़बड़ा गई। नहीं तो, किरण जल्दी से बोली। नहीं तो क्या, मैं अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तुम नहीं बताओ तब भी मुझे पता है। लेकिन तुम्हारी शादी का सुनकर मुझे बहुत टेंशन हो गई है। हिना के फिक्रमंदी से कहने पर किरण चौंक कर उसे देखने लगी तो वो कहने लगी, पता नहीं साजिद भाई तुम्हें किस किस की आवाज निकाल कर डराएंगे। हिना के निहायत संजीदगी से किए मजाक पर किरण ने उसे एक धप लगा दी। उसने वाकई किरण को डरा ही दिया था। उसके धमोके पर हिना खिलखिलाकर हंस दी, फिर एकदम जोश में आते हुए बोली, क्या ख्याल है मैं साजिद भाई को फोन करके विश ना कर दूं इन्हें। मर्जी है तुम्हारी, किरण ने लाताल्लुकी से कहा। हाँ, कर ही लेती हूँ, आखिर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी जिशान भाई की शादी में। हिना ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा और इसी वक्त किरण को भी खींच खांच कर अपने घर ले आई। वासिफ से उसका मोबाइल लेना आसान काम नहीं था। उसे बहुत सारी स्वीट डिशेस बनाकर खिलाने का वादा करके जब उसने कमरा बंद करके फोन मिलाना शुरू किया तो किरण इतनी दर्द सरी पर उसे टोकने लगी। आखिर क्या मुसीबत आ गई है बात करने की। हिना घर से इस्लामाबाद का नंबर मिलाना नहीं चाहती थी और वासिफ के मोबाइल में साजिद का नंबर महफूज था, उसे नंबर ढूंढने की भी जरूरत नहीं थी। अरे इतने दिन हो गए उनकी मजेदार बातें सुने हुए, तुम प्लीज मेरे सामने ये जाहिर करने की कोशिश मत करो कि तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं इस सारे मामले में। अगर बैलेंस ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हारी बात भी करवा दूंगी। हिना फोन बुक में नंबर सर्च करते करते जल्दी जल्दी बोली। खबरदार जो मुझे फोन दिया तो बल्कि तुम ये जाहिर भी मत करना कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, किरण सख्ती से बोली। मैं तो बता दूंगी, बल्कि ये भी कह दूंगी कि आपका नंबर किरण को जुबानी याद था, इसी से पूछकर मिलाया है। हिना शरारत से मुस्कुराते हुए बोली और वो उसे रोकने के लिए कुछ कहना ही चाहती थी कि हिना ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। शायद दूसरी तरफ घंटी बज रही थी। किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिना फोन पर क्या कह दे, उसका दिल चाह रहा था कि उठकर चली जाए, मगर सुनना भी चाहती थी कि वो क्या बात कर रही है। दूसरी तरफ साजिद की आवाज सुनकर उसने किरण को ऐसे इशारे किए थे जैसे कह रही हो, अब तुम्हारी खैर नहीं। किरण का तो वाकई बुरा हाल हो गया था।
वो इल्तिजाइया अंदाज में उसे देखने लगी जो कह रही थी, हेलो साजिद भाई, कैसे हैं आप? क्या आपने पहचाना मैं कौन हूँ? वासिफ के मोबाइल से फोन आया है तो तुम हिना ही होगी। दूसरी तरफ से आवाज उभरी, क्यों, हिना के अलावा भी कोई लड़की वासिफ के फोन से आपसे बात कर सकती है? हिना ने आंखें मटकाते हुए किरण को देखा, जिसने अपना सर पीट लिया। क्योंकि हिना ने स्पीकर ऑन कर लिया था, इसीलिए उसे साजिद की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दाव मुझ पर आजमाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम किरण नहीं हो सकती। क्यों? उसके मुताने से कहने पर हिना ने जराह की, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे फोन कर सके, और अगर वो फोन करती तो मुझे भाई ना कहती। साजिद की बात पर हिना खिलखिलाकर हंस दी, जबकि किरण जज्बत होकर रह गई। चले, मान लिया, आपको बेवकूफ बनाना हमारे बस की बात नहीं। अब ये बताएं कि इतनी शराफत से आप किरण के साथ शादी के लिए राजी क्यों हो गए? आप तो दादा जान के किसी फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। हिना ने शौकी से अपने तौर पर शरारतन पूछा था, मगर किरण हमतन गोश हो गई। मजाक में ही सही, हिना ने गहरी बात पूछ ली थी। वो तो यही तवक्का कर रही थी कि साजिद हंसकर कोई शौक सा जुमला कहेगा, जबकि किरण की समातें हर जवाब के लिए तैयार हो गई थी। हिना, क्या किरण वहां मौजूद है? साजिद ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर पूछा। साजिद भाई, ये कोई लोकल कॉल नहीं है, अगर आपको किरण से बात करनी है तो अपना बैलेंस खर्च करें। हिना के इस सवाल का जवाब हिना इसके सवाल का कुछ और ही मतलब निकालते हुए बोली तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जिस पर हिना पहले तो खिलखिलाकर हंस दी, फिर बड़ी शान ने बेनियाजी से बोली, चलें, आप भी क्या याद करेंगे किस दरिया दिल साली से वास्ता पड़ा है। मैं बात करा देती हूँ, किरण सामने ही मौजूद है। किरण लाख इशारे करती रह गई, मगर हिना ने ना सिर्फ अपनी बात पूरी की बल्कि फोन उसके हाथ में थमा दिया। किरण एक ही पल में सर से पैर तक पसीने में शराबूर हो गई। वो इतनी नर्वस हो गई थी कि उसे स्पीकर ऑफ करने का भी ख्याल नहीं आया। ये ख्याल उसे तब आया जब दूसरी तरफ साजिद संजीदगी से बोला, नहीं हिना, किरण को फोन मत देना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, ओके, अल्लाह हाफिज। उसने दूसरी तरफ की बात सुननी भी जरूरी नहीं समझी और फोन बंद कर दिया। किरण अजीबोगरीब एहसासात के साथ मोबाइल थामे खड़ी रह गई। हिना उसे मोबाइल पकड़ाकर हाथ बांधकर ऐसे खड़ी हो गई थी जैसे अब मजा आएगा। वो भी इस अंदाज पर कुछ ना समझने वाले अंदाज में किरण को देखने लगी। किरण ख्वामख्वाही खजालत महसूस करने लगी। अगर उसने स्पीकर बंद कर दिया होता तो वो हिना से कह देती कि लाइन ड्रॉप हो गई, क्योंकि उसके इस तरह फोन बंद करने पर किरण को बेइज्जती का एहसास हुआ था। जबकि हिना कुछ देर तो हैरान हुई, फिर एकदम हंस दी। कमाल है यार, साजिद भाई ने तो लड़कियों को भी मात दे दी। आजकल तो लड़कियां भी ऐसे नहीं शर्माती। जैसे उन्होंने लज्जाकर फोन बंद कर दिया। हिना के जोर जोर से हंसने पर किरण ऐसे जबरदस्ती मुस्कुराने लगी जैसे वो भी साजिद के फोन बंद कर देने पर महसूस हो रही हो। हालांकि उसके अंदर की बेचैनी सवा हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, किरण के वहम में भी इजाफा हो रहा था। जब तक वो साजिद से मिली नहीं थी तब तक वो इसे एक रूड और तन्हाई पसंद इंसान लगता था, मगर जिशान भाई की शादी में उसे इतने करीब से देखकर उसकी पिछली दिनों दोनों आरा गलत साबित हो गई थी। और अब जो इमेज उसका किरण की नजरों में बना था, उसके बाद उसे साजिद की इतनी खामोशी परेशान कर रही थी। जब खानदान भर में मिठाई बांटी गई तो लाशऊरी तौर पर वो साजिद के फोन का इंतजार करने लगी थी। मगर शादी की तारीख तक तय हो गई, मगर उसने किरण से कोई कांटेक्ट नहीं किया। शादी की तैयारियों में मसरूफ होकर अगर वो कुछ देर के लिए अपने जहनी बहरान कोई ना कोई ऐसा सवाल कर देता कि उसकी सारी खुशी पर ओस पड़ जाती। शादी की शॉपिंग के लिए घर से निकलती तो अम्मी और नाइला भाभी उसकी पसंद पूछती रह जाती और उसका जहन कहीं और उलझा रह जाता। कभी कभी अपनी इस दर्जा परेशानी पर उसे हैरत भी होती कि वो क्यों बगैर किसी बात के इतनी फिक्रमंद है। जब सब खुश हैं तो यकीनन सब ठीक ही होगा, मगर उसकी छठी हिस्स मुसलसल उसे किसी गैर मामूलीपन का एहसास दिलाती रहती। किरण, साजिद को कौन सा कलर पसंद है? मेरे ख्याल से तुम्हारे जहेज में सारे जोड़े रेड कलर के हो गए हैं। मतलब ये कि अभी जो टेलर के हाथ सूट दिए हैं उनमें भी एक शॉकिंग पिंक है और एक मैरून। उस दिन जो साड़ी तुम्हारे लिए खरीदी थी वो भी बरगंडी कलर की है। कुछ मर्दों को रेड कलर ज्यादा पसंद नहीं होता, कहीं ऐसा ना हो कि साजिद तुम्हें ये कपड़े पहनने ही ना दे। भाभी ने कपड़ों की एक दुकान पर अचानक पूछा। वो इसके पिछले दोनों बनाए गए जहेज के कपड़ों की तफसील कहती चली गई, जबकि किरण का जहन एक ही बात पर अटका हुआ था जिससे उन्होंने अपने जुमले की इब्तदा की थी। वो तो ये ना कह सकी, मगर हिना ने उसके मुंह की बात छीन ली। भाभी, किरण को साजिद भाई की पसंद नापसंद के बारे में कुछ मालूम ही कहाँ है? क्यों, तुम दोनों तो फर्स्ट कजन हो। भाभी ने हैरान होकर किरण को देखा तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, वो भाभी, हमारी इतनी मुलाकात ही कहाँ हुई है। बचपन से अलग अलग शहरों में रहे हैं, मैं तो उनकी शक्ल भी तकरीबन भूल गई थी। मगर वो आपकी शादी अटेंड करने ना आ गए होते। किरण की बात पर हिना फौरन बोल उठी, अगर वो ना भी आते तो भी क्या फर्क पड़ता? तुम्हें कौन सा उनकी शक्ल देखकर उन्हें पसंद या नापसंद करना था? बल्कि मेरे ख्याल से तो उनका ना आना ही अच्छा होता। कम से कम उनकी लाताल्लुकी को हम उनकी आदत समझकर नजरअंदाज तो कर सकते थे। मगर अब उनका रवैया देखकर लगता है जैसे किरण किसी ट्रायंगल लव स्टोरी की साइड हीरोइन बनने जा रही हो।
बाज़ औक़ात इंसान मजाक करते वक्त ये नहीं सोचता कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी, जो सामने वाले के दिल में किसी तीर की तरह पेवस्त हो जाती है। हिना भी इस वक्त अपनी बात कहकर निहायत भोंडे अंदाज में हंसने लगी, जबकि किरण ने बामुश्किल पलकें झपकाकर अपनी आंखों में आई नमी को पीने की कोशिश की थी। मालूम नहीं कि भाभी को इसकी हालत का अंदाजा हो गया था या नहीं। खुद ही हिना का मजाक अच्छा नहीं लगा, जो उसे झिड़क कर कहने लगी, फजूल बातें मत करो। हिना, शादी से पहले मैंने और ज़ीशान ने भी एक दूसरे को नहीं देखा था, तो क्या मैं ट्रायंगल लव स्टोरी की साइड हीरोइन बन गई? मेरे ख्याल से तुम फिल्में देखना कुछ कम कर दो। भाभी के नागवारी से कहने पर हिना कुछ संजीदा सी होकर वजाहत देने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा ये मतलब थोड़ी था। और फिर आपकी और ज़ीशान भाई की बात अलग थी। एक तो बिल्कुल गैर खानदान था, और आप भी चट मंगनी पट ब्याह के मुताबिक फौरन घर आ गई। जबकि साजिद भाई और किरण तो कज़न हैं, वो कम से कम किरण को फ़ोन तो कर सकते हैं। अब देखें ना, इतनी दूर दूसरे शहर में बैठे ही उनके रद्द अमल का अंदाज़ा, फिर वही फिल्मी बातें। क्या ये ज़रूरी है कि हर मौके पर रद्द अमल के नाम पर छिछोरी हरकतों को अपने लिए जायज़ बना लिया जाए? साजिद ने अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो ये काबिल स्ताइश बात है, ना कि काबिल तफ्शीश। भाभी ने गुस्से से कहा तो किरण को ऐसे लगा जैसे उसके सर से कोई बोझ उतर गया। उस पल उसे अपना वजूद हल्का फुल्का होता महसूस हुआ था। हालांकि उस किस्म की तसल्लियां उसने खुद को कई बार दी थी, मगर अब भाभी के कहने पर उसे वाकई यकीन आ गया था। हिना अब भी अपनी बात की वजाहत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब मसला उसकी इमेज का बन गया था, जो भाभी की बातों की रोशनी में एक निहायत लाउबाली बल्कि किसी हद तक बेशरम लड़की का बन गया था। वो जो कहना चाह रही थी वो किरण बखूबी समझ रही थी, मगर उसने हिना की मदद ना करते हुए अपनी तवज्जो दुकान पर रखे इन कपड़ों की तरफ मबजूल कर ली, जिन पर नजर पड़ने के बाद भाभी को वो सवाल पूछने का ख्याल आया था। किरण पहली बार निहायत दिलचस्पी से इन कपड़ों का जायजा लेने लगी। जब तक वो अंदर से परेशान थी, उसे हर चीज गैर जरूरी और बकवास लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसके अंदर का मौसम तब्दील हुआ, उसे हर शय पुरकशिश लगने लगी। और ये रवैया शादी के दिन तक जारी रहा। उसने सही मायनों में अपनी शादी को भरपूर तरीके से एंजॉय किया था। सबके मजाक का दू बदू जवाब देने के साथ साथ उसने अपने जहेज की हर चीज़ बड़ी छान पटक कर खरीदी थी। हालांकि शॉपिंग के दौरान वो अक्सर साजिद का जुमला दोहराती रहती, उन्हें जहेज लेना और देना ज़्यादा पसंद नहीं, वो हिंदुआनी रस्म कहते हैं इसे। लेकिन अम्मी कह रही हैं कि दुनिया तो मुझे देना तो मुझे है, तुम नहीं बताओगी तो हम अपनी पसंद से ले आएंगे। हिना वगैरह उसकी बात सुनती भी नहीं थी। वासिफ तो फौरन ही शौक हो जाता उसका तरसे तखातुब सुनकर। उन्हें वासिफ लफ्ज़ खींचते हुए कहता तो वो जो रवानी में बोल रही होती थी एकदम झेप जाती, और जिस दिन मेहंदी थी उसी दिन तो वासिफ ने गोया उसका जीना हराम कर दिया। उसने कहा, साजिद भाई आपसे बात करना चाहते हैं, मगर वो मेहमानों से भरे घर में आपको फ़ोन नहीं कर सकते, इसीलिए वो मेरे मोबाइल पर फ़ोन करेंगे, आप अटेंड कर लीजिएगा। पहले तो किरण ने यकीन करने से इनकार कर दिया, मगर जब वो अपना मोबाइल उसके कमरे में छोड़ गया तो उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करेगी, बल्कि वो ये भी समझने से कासिर थी कि वो अब क्यों फोन कर रहा है। चाचा जान शादी के लिए कराची आ गए थे और वो पूरी बारात होटल में ठहरी थी। शादी के बाद वो सब तो वापस इस्लामाबाद चले जाते, जबकि इन दोनों के लिए दादा जान ने तोहफे के तौर पर पाकिस्तान टूर का पैकेज बुक करा दिया था। किरण परेशान सी बैठी थी जब मोबाइल बज उठा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मतें मुजतमा करके कॉल रिसीव की थी और बड़ी फंसी फंसी आवाज में बोली थी, हेलो, शुक्र है तुमने ही फोन उठाया है, वरना मैं सोच रहा था कहीं वासिफ कोई गड़बड़ ना कर दे। खैर कैसी हो? साजिद ऐसे बोला था जैसे उससे बात ना होने का यकीन हो। उसके खैरियत पूछने के आम से सवाल पर भी किरण ऐसे सोच रही थी जैसे क्लास 1 के बच्चे से क्लास 9 का सवाल पूछ लिया हो। उसकी खामोशी पर साजिद खुद ही बोला, किरण तुम सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें इस वक्त क्यों फ़ोन किया है, जबकि हिना के फ़ोन करने पर मोबाइल तुम्हारे हाथ में था और मैंने बात किए बगैर लाइन काट दी थी। साजिद के आहिस्तगी से कहने पर किरण उलझ गई, मगर बोली कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद ही कह रहा था, बुरा तो बहुत लगा होगा ना तुम्हें मेरा फ़ोन काट देना। और फिर मैंने दोबारा फ़ोन भी नहीं किया। असल में मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मुझसे कोई उम्मीदें बंधें और फिर तुम मेरी इन उम्मीदों पर पूरा ना उतरने से तुम्हें धचका लगे। उसका बात करने का अंदाज ऐसा था कि किरण की बेतरतीब होती धड़कनें मामूल पर आ गईं, बल्कि एक बार फिर उसकी छठी हिस्स ने उसे खुद को किसी अनहोनी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मजीद कह रहा था, किरण पता नहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा मुकाम आया है या नहीं जहाँ जहाँ तुम्हारा दिल कुछ कह रहा हो और दिमाग कुछ और, मगर मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, बल्कि आज भी मैं ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा हूँ। उसकी बातें किरण को परेशान करने लगीं। तभी वो अंदर के शोर से घबराकर बेख्तियार चिढ़कर बोली, साजिद प्लीज फलसफा छोड़ दें और सीधी तरह बता दें कि बात क्या है। उसकी बात सुनकर साजिद अजीब से अंदाज में हंसकर कहने लगा, जो बात कहना मेरे लिए मुश्किल हो रही है वो सुनना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। हालांकि अपने तौर पर मैंने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हारे दिल को कम से कम ठेस पहुंचे, मगर मैं जानता हूं कि मेरी हर कोशिश बेकार है। साजिद खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था। किरण सांस रोके उसकी बात सुन रही थी। जो कह रहा था, किरण मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया था जिसका असर बहुत सी जिंदगियों पर पड़ेगा।
फिर भी मैंने वो फैसला अकेले ही कर लिया और अब इस पर अमल करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक चीज़ है जो मेरे फैसले की राह में हाइल हो रही है, मगर मैं खुदगर्ज बनकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। फिर भी मुझे लगा क्यों ना अपने फैसले पर अमल करने से पहले इस चीज़ से पेशगी माफ़ी मांग लूँ, बाद में शायद इसका मौका ना मिले। मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ तुम उसकी मुस्तहिक नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो किरण। अगर आम हालात में हमारी शादी हो रही होती तो मैं बहुत खुश होता, मगर मेरी ज़िंदगी में कभी आम हालात आए ही नहीं। इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, मगर जब हालात खुद ब खुद ऐसे हो गए हैं कि मैं बड़ी आसानी से अपना हिसाब बराबर कर सकता हूँ, तो मैंने खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हुए तुम्हें अपनी मंजिल की सीढ़ी बना लिया। मगर तुम्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने के बाद भी मैं किसी ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाऊंगा, बल्कि जो मेरे पास है वो भी मुझसे छिन जाएगा। बस यही सोचकर मुझे माफ कर देना। साजिद, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या करने वाले हैं? किरण को खुद नहीं मालूम था कब उसकी आंखों में नमकीन पानी जमा होने लगा। बड़ी मुश्किल से अपनी रुंधी हुई आवाज में इतना ही कहा था कि साजिद कहने लगा, सब समझ में आ जाएगा। बस मैं चाहता था तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। हालांकि जब से हमारी शादी तय हुई है तब से लेकर अब तक तुमने जो कुछ भी सोचा होगा उस ट्रांस से इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें आगाह भी नहीं कर सकता था। अल्लाह हाफिज। साजिद ने उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर फोन बंद कर दिया, जबकि किरण बेआवाज रोती चली गई। पता नहीं किरण से सुनने में गलती हुई थी, समझने में गलती हुई थी, या उसके वालदैन से फैसला करने में गलती हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसको बताए या नहीं। ले देकर उसे हिना ही नजर आई थी। भरे पूरे घर में उससे बात करने का मौका भी बड़ी मुश्किल से मिला था। हिना भी बात सुनकर लम्हा भर के लिए फिक्रमंद हुई, मगर फिर उसने साजिद की बात को उसका मिजाज कहकर रद्द कर दिया, बल्कि उसके होलने पर उसे टोकते हुए बोली, कमाल है किरण, साजिद भाई को इतनी अच्छी तरह जानने के बावजूद भी तुमने उनके मजाक पर इतनी आसानी से यकीन कर लिया। अरे तुम खुद सोचो, जिशान भाई के साथ उन्होंने कैसा जबरदस्त गेम खेला था। कोई सुने तो कभी यकीन न करे कि दुल्हन को कमरे से निकाल कर उजले और उसी में एक जाली दुल्हन को बिठा दिया और साथ में कजन्स को भी कमरे में छुपा लिया। हिना उस वक्त को याद करके बेसाख्ता मुस्कुरा दी। किरण के इस्तराब में उसकी तसल्ली से कोई कमी नहीं आई थी। खुद हिना के पास भी तसल्ली देने का वक्त नहीं था, तभी तो उसने सिर्फ इतना कहा, देखो परेशान मत हो, कल जब हम मेहंदी लेकर जाएंगे तो मैं उनसे खूब लड़ूंगी, बल्कि मैं कह दूंगी कि तुम्हारा परेशानी के मारे नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है। तब वो खुद ही सारा सच उगल देंगे। नहीं हिना, ऐसा कुछ मत कहना, किरण ने फौरन टोका। क्यों ना कहूँ, जब वो मजाक कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हिना बहस समेटकर फौरन कमरे से निकल गई और किरण उसके पीछे नहीं जा सकती थी उसे समझाने के लिए। लेकिन मेहंदी के बाद जब वो घर आई तो उसकी शक्ल किसी हौसला शिकन बात की निशानदेही कर रही थी। तुमने कुछ पूछा उनसे? किरण ने छूटते ही पूछा। नहीं, हिम्मत नहीं हुई। वो इतने संजीदा था कि वासिफ और आमिर की छेड़छाड़ का भी जवाब नहीं दिया। पता नहीं मुझे तुमसे ये सब कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो बड़बड़ाने के अंदाज में बोली तो किरण सुन होते जहन के साथ उसे देखती रह गई। कुछ हो जाना इतना अजियतनाक नहीं था जितना कुछ हो जाने का इंतजार जानलेवा होता है। कल उसकी शादी थी, अब कुछ कहने सुनने का वक्त नहीं बचा था। उसे सिर्फ बैठकर तमाशा देखना था कि अब क्या होता है। वक्त रेंग रेंग कर गुजरता रहा और शादी का दिन आ गया, मगर कुछ हुआ ही नहीं। निकाहनामे पर दस्तखत करते वक्त उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि साजिद निकाह होने देगा। गोया उसने वाकई मजाक किया था, लेकिन इतना भयानक मजाक। वो अच्छी खासी उलझ गई थी और इस वक्त स्टेज के साथ बने ड्रेसिंग रूम में मौजूद थी, जहाँ औरतों और बच्चों का इतना हजूम था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। इतने मजमे के अलावा इतने भारी कपड़ों और ज्वेलरी की वजह से उसका दम घुट रहा था। छोटे से कमरे में दुल्हन को देखने के शौक में चले आने वाले बच्चे और बच्चों के साथ आई उनकी माएं किरण को सर पर चढ़ी महसूस हो रही थीं। गला भी सूख कर कांटा हो रहा था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पानी किससे मांगे। नाइला भाभी भी उसे एक सोफे पर बिठाकर जाने कहाँ गायब हो गई थी। आखिर जाने कैसे इस रश में उसे भाभी की बहन शुमाइला नजर आ गई। वो इसे इशारे से अपने पास बुलाना चाहती थी कि वो खुद ही उसके पास चली आई। किरण बाजी, नाइला भाभी कहाँ हैं? उसने सरगोशियाना अंदाज में पूछा। अरे भला मुझे क्या पता, मैं तो खुद यहाँ बैठी हूँ, मगर बात क्या है? किरण ने हैरानी से कहा। वो जिशान भाई पूछ रहे हैं, शुमाइला कुछ फिक्रमंदी से बोली। क्यों, क्या हुआ? किरण चौंक कर पूछने लगी। पता नहीं किरण, जिशान भाई कह रहे हैं नाइला बाजी से कहो तुम्हें और अम्मी को घर लेकर चले जाएं। शुमाइला ने उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या? किरण दुल्हन बनी होने के बावजूद अपनी आवाज को बुलंद होने से ना रोक सकी। शुमाइला ने उसका हाथ दबाकर गोया फौरन उसे माहौल की नजाकत का एहसास दिलाया, तो किरण खुद को संभालने की कोशिश करते हुए आहिस्तगी से कहने लगी, लेकिन क्यों, हम क्यों घर चले जाएं? पता नहीं किरण, नीचे मर्दाने में एक अजीब माहौल बना हुआ है शायद। साजिद भाई रुखसती के लिए तैयार नहीं है, शुमाइला ने कुछ झिझकते हुए कहा। किरण को ऐसे लगा जिसके जैसे उसके हवास उसका साथ छोड़ रहे हों। इतने शोर और हंगामे के बावजूद उसे अपने इर्द गिर्द सन्नाटा फैलता हुआ लग रहा था। लोग इधर से उधर टहलते और बातें करते नजर आ रहे थे, मगर जैसे
टीवी पर कोई सीन चल रहा हो और उसकी आवाज़ बंद कर दी गई हो। बिल्कुल ऐसा ही किरण को महसूस हो रहा था। शुमाइला ने उसके चेहरे से उसकी अंदरूनी हालत का अंदाज़ा लगाते हुए शायद उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी, मगर किरण को कुछ सुनाई कहाँ दे रहा था। वो बुत बनी यकटिक ज़मीन को देखे जा रही थी। शुमाइला मजबूरन उसे उसके हाल पर छोड़कर नाइला की तलाश में वहां से उठ गई। किरण पर तारी सकता एक औरत के वावेला मचाने पर टूटा था। अरे नीचे मर्दाने में एक हंगामा बर्पा हो गया है। जाने क्या हो गया है, जाने कौन बोल रहा था। किरण ने आवाज की सिम देखा। एक बहुत भारी जिस्म की औरत आंखें घुमा घुमा कर बोल रही थी, जिसके नतीजे में सारा शोर तब्दील होकर सवालों और तजस्सुस में ढल गया। क्यों, क्या हो गया? हमें तो कुछ नहीं मालूम। मालूम तो मुझे भी नहीं, मेरा बेटा अभी अभी नीचे से आया है, वही कुछ कह रहा था। वही औरत बोली। अरे क्या कह रहा था? यही कि नीचे मर्दाने में लड़ाई हो रही है। कैसी लड़ाई? अरे मासूम बच्चे को क्या पता, मैं जाऊं तो मालूम हो। वैसे वो कह रहा था दूल्हे ने कहा है कि दादा जान का मकान उसके नाम कर दें, वरना वो रुखसती कराए बगैर वापस चला जाएगा। जाने इस औरत का कौन सा मासूम बच्चा था जो कुछ नहीं जानता था मगर अपनी माँ को सब बता गया था, ताकि वो सारे में ढिंडोरा पीट दें कि किरण खाली खाली नजरों से उनके चेहरों को देख रही थी, जो मर्दाने में लड़ाई का वो गर्मा गर्म मंजर देखने के लिए बेचैन हो गई थी। निकाह होने के बाद दादा जान ने उसे गले लगाते हुए बड़ी खुशदिली से कहा, मुबारक हो भई, माशाल्लाह, आज तो खूब जच रहे हो। उन्होंने कंधों से साजिद को थामते हुए उसे सर से पैर तक देखा। दुल्हा का इस्तकबाल करना आपके लिए बिल्कुल नया तजर्बा होगा ना, वरना आप तो हमेशा लड़के वाले होते हैं। कोई बेटी जो नहीं थी आपकी? साजिद ने बड़ी संजीदगी से कहा, जबकि वो हंस दिए। हम तो आज भी लड़के वाले हैं, बारात में नहीं आए तो क्या हुआ, तुम्हारे दादा हैं तो लड़के वाले ही हुए ना। अच्छा, तो फिर इस बार आपने लड़की वालों से जहेज क्यों नहीं मांगा? साजिद ने निहायत तंजिया अंदाज में कहा। तो उनके पास खड़े चचा जान, किरण के वालिद और जिशान सब चौंक उठे। जुबान संभाल कर बात करो साजिद, चचा जान ने धीमे मगर निहायत सख्त लहजे में कहा। तो साजिद अजीब से अंदाज में हंस दिया, जबकि दादा जान खामोशी से उसे देखते रहे। कमाल करते हैं आप बाबा जान, मैं तो अपने दादा के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ और आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। आपकी शादी पर दादा जान ने जो किया था, मैं अपनी शादी पर उसी रस्म को आगे बढ़ाते हुए अपनी ससुराल से एक घर मांग रहा हूँ। लड़की वालों के पास अपना जाती घर मौजूद है, जिसे खानदान के रिवाज के तौर पर इन्हें मुझे जहेज में दे देना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। लिहाजा अब मुझे खुद अपनी जुबान से कहना पड़ रहा है, जैसे मेरे माँ बाप की शादी पर मेरे दादा जान को कहना पड़ा था। आज मैं उन्हीं के अल्फाज इन्हें लौटा देता हूँ। हम आपकी लड़की को इस वक्त रुखसत कराकर ले जाएंगे जब आप अपना ये घर मेरे नाम कर दें। साजिद के लहजे में इससे भी ज्यादा दृष्टि थी जितनी दादा जान के लहजे में आज से कई साल पहले यही बात कहते हुए सर्द महरी थी। साजिद क्या बकवास कर रहे हो? उसके वालिद एहसान अहमद अपने जलाल पर काबू पाते पाते आखिर फट पड़े थे, जबकि दादा जान चेहरे पर एक मुंजमद खामोशी लिए बदस्तूर उसे देखे जा रहे थे। अलबत्ता उनकी आंखों में शदीद गुस्से के तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। नाराजगी के तौर पर वो खामोशी से पलटने लगे थे, तभी साजिद बोल उठा। दादा जान, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर ये कोठी मेरे नाम ना हुई तो आपकी पोती जिंदगी भर आपकी दहलीज पर बैठी रह जाएगी। साजिद के एक एक लफ्ज चबाकर कहने पर एहसान अहमद ने शदीद गुस्से में कुछ कहना ही चाहा था कि दादा जान ने हाथ उठाकर उन्हें चुप करवा दिया और खुद साजिद को बगौर देखते हुए बोले, ये सारी बकवास तुम्हारे सामने तुम्हारे नाना ने की होगी, लेकिन उस बुढ़े ने शायद तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कितना जिद्दी हूँ, तुमसे भी कहीं ज्यादा। मुझे मालूम है तुम्हें कोठी से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम सिर्फ मुझे जलील करने के लिए ये सब कर रहे हो, लेकिन मैं ब्लैकमेल होने वालों में से नहीं हूँ। किरण भले ही सारी जिंदगी हमारे सीनों पर मूंग दलती रहे, मगर वो कोठी किसी कीमत पर तुम्हारे नाम नहीं होगी। साजिद को उनसे यही तवक्का थी। उसे पता था कि बारात के वापस जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किरण की शादी कहीं और कर देते। इसीलिए उसने निकाह के बाद अपनी शर्त उनके सामने रखी थी, लेकिन उनकी हरदर्मी पर तब भी कोई कमी नहीं आई। अलबत्ता जिशान, जो बेयकीनी से यह सब देख रहा था, एकदम गड़बड़ा गया। अपने वालिद को खामोश देखकर उसे ही बोलना पड़ा। साजिद, ये तुम क्या कर रहे हो? हमने तो जहेज में हर चीज दी है, फिर भी अगर तुम्हें घर चाहिए तो उसका इंतजाम भी हो सकता है। दादा जान की कोठी लेना ही जरूरी नहीं, इसमें तो वैसे भी तुम्हारा हिस्सा मौजूद है। हम तुम्हें कोई और फ्लैट दिला सकते हैं, बल्कि अगर तुम चाहो। चुप हो जाओ जिशान, इसे कोई कोठी नहीं चाहिए। अपनी 2 टके की माँ के लिए ये हमें बेइज्जत कर रहा है। एहसान अहमद ने चिल्लाकर जिशान को चुप करवा दिया, क्योंकि स्टेज पर बहस छिड़ती देखकर लोगों में अफरा तफरी मचलने लगी थी। हॉल में बैठे मर्द हजरात स्टेज के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए थे और यही तमाशा बनने का एहसास उनके इश्ताल का सबब बन रहा था। मेरी माँ 2 टके की नहीं, 2 कौड़ी के लोग आप जैसे होते हैं, जो ससुराल के पैसे पर ऐश करते हैं और जब किसी चीज की जरूरत होती है बीवी को मेके भेजकर भिखारी की तरह उनसे पैसे मांग लेते हैं। साजिद की आंखों में खून उतर आया था अपने बाप की बात सुनकर। साजिद, तुम हद से बढ़ रहे हो। दादा जान गरजे।
अगर मैं हद से बढ़ रहा हूँ तो आप लोगों ने कौन सी हद का पास रखा था? साजिद की आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। इस सूरत-ए-हाल से सभी परेशान थे, मगर सबसे ज़्यादा उलझन का शिकार ज़ीशान था, जिसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि चची जान के घरवालों से ऐसी कौन-सी डिमांड कर दी थी, जिसका इंतकाम साजिद उसकी मासूम बहन से ले रहा था। अभी और इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। दादा जान की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उन्हें पता था साजिद जितनी देर यहाँ मौजूद रहेगा, उसकी माजी में की गई ज्यादतियाँ बताता रहेगा, और वो इतने भरे मजमे में अपनी कमजोरी की दास्तान सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। अपनी खसलत के उजागर हो जाने से पहले वो साजिद को यहाँ से निकाल बाहर करना चाहते थे। इससे पहले कि वो इसे धक्के देने पर उतर आते, साजिद खुद ही गले में पड़े हारों को खींचकर एक झटके से तोड़ता सीढ़ियों से उतरने लगा। ज़ीशान अपनी बहन की बर्बादी और अपने बाप की मुसलसल खामोशी पर मुसरिफ साजिद की तरफ लपका। साजिद, चची जान तो तुम्हारे अब्बू के साथ बहुत खुश हैं। तुम उनकी किस मरहूमी का बदला मेरी मासूम बहन से ले रहे हो? किरण के जिक्र पर साजिद के चेहरे पर एक साया से लहरा गया, मगर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए खुद को संभाल कर कहने लगा, आपकी चची अपने शोहर के साथ बहुत खुश हैं, क्योंकि उनके वालिद ने बाबा की फरमाइश के मुताबिक हर चीज दी थी। बल्कि आज उनके सारे बिजनेस के बाबा जान ही कुल मालिक हैं। लेकिन यह हकीकत तो आपको भी मालूम होगी कि आपकी चची मेरी मां नहीं है। साजिद के कहने पर ज़ीशान शशदर सा रह गया। बहुत बचपन में उसने कभी सुना तो था कि चची से पहले चचा जान की एक बीवी और थी, जिनसे उनका एक बेटा भी था, मगर ऐसी बातें उसके घर में कम ही होती थीं। फिर वो सब रहते भी दूसरे शहर में थे, उनका जिक्र शाज़ो नादिर ही होता था, इसलिए ये बात उसके जहन से बिल्कुल महव हो गई थी। और अब याद आने पर बहुत कुछ खुद ब खुद उसकी समझ में आता जा रहा था। वो चुपचाप तेजी से आगे बढ़ते साजिद को देखता रहा और ख्वाहिश के बावजूद उसे रोक ना सका। पूरे घर में हू का आलम था। इतने लोगों की मौजूदगी में भी ऐसा सन्नाटा था जैसे घर में मौत हो गई हो, और मौत ही तो हुई थी सबके अरमानों की, खुशियों की, उम्मीदों की, आरजुओं की। बैक वक्त इतनी अमवात पर घर में जितना भी मातम होता कम था। हाल में साजिद के जाते ही कोहराम मच गया था। दादा जान ने अपनी गलती का इतराफ नहीं किया, मगर उनका शदीद रद्द-ए-अमल उनकी खजालत, शर्मिंदगी और सबके सामने तमाशा बनने पर जिल्लत के एहसास से दो चार होने की गवाही दे रहा था। मगर उनकी हरदरम फितरत और उनकी जिद्दी तबीयत अब भी इस बात की मुतमन्नी नहीं थी कि वो साजिद के सामने माजरत कर लेते, या कम अज कम अपने फेल पर पछताते हुए इजहार अफसोस ही कर लेते। शायद इस तरह उनका डिप्रेशन कुछ कम हो जाता। मगर हिस्ट्रिक होने पर उनकी हालत बिगड़ती चली गई। आखिर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से घर के दूसरे अफराद को इस अलमिया पर शोक मनाने का मौका ही नहीं मिला। दादा जान की हालत बहुत नाजुक थी। सब उनके पास अस्पताल में थे, और अम्मी या खाला वगैरह एक आध लोग जो घर में थे खामोशी से मुसल्ले पर बैठ गए थे, एक सिवाय किरण के। वो अभी तक एक शौक में घिरी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो चुका है। उसने अखबारों में अक्सर ऐसी सुर्खियां पढ़ी थी, गैस का चूल्हा फटा और जहेज ना लाने वाली बहू हलाक हो गई, या फलां इलाके में जहेज ना मिलने पर बारात वापस लौट गई और लड़की के वालिदैन ने खुदकुशी कर ली। सरसरी अंदाज में इन खबरों को पढ़ते वक्त उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो भी ऐसी किसी खबर का हिस्सा बन जाएगी। उसके वालिदैन के पास पैसों की कमी नहीं थी। ये मुतालबा अगर साजिद ने पहले किया होता तो उसके वालिदैन ये बंदोबस्त भी कर देते। मगर यहाँ सवाल जहेज का नहीं था, सिर्फ अना की एक जंग थी जिसमें वो रुल गई थी। वो इतनी शौक थी कि उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं टपका था। हालांकि घर आकर शादी का जोड़ा और जेवरात उतारते वक्त उसका दिल चाहा था चीख चीख कर रोए, मगर वो जानती थी कि उसकी आंख से गिरने वाला हर आंसू उसकी माँ को खून के आंसू रुलाएगा, और वो इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, जिस पर पहले ही साजिद ने दुख का पहाड़ तोड़ दिया था। इसीलिए वो अपने कमरे में बंद हो गई थी। उस पर नजर पड़ते ही वो आबदीदा हो जाएंगी। दादा जान की हालत का सुनकर उन सबका ध्यान उस सानहे से हटकर वज़ाइफ और दुआओं की जानिब मबजूल हो गया था। लेकिन किरण उन सबकी तरह दादा जान की सेहत के लिए हाथ उठाकर दुआ नहीं मांग सकी थी। उसे साजिद के इस कदर सफाकाना अमल का पसे मंजर पूरी तरह पता नहीं था। उसे इधर उधर से बस इतनी ही सुनगुन मिली थी कि साजिद ने अपनी माँ के साथ हुई नाइंसाफी का बदला दादा जान से लेने के लिए किरण के साथ शादी की हामी भरी थी। ये सब सुनकर किरण का दिल चाहा था साजिद का गिरबान पकड़कर पूछे कि उसकी जात को निशाने सितम बनाने का उसे क्या हक था। दादा जान को नीचा दिखाने के लिए उसने किरण की इज्जत और गुरूर को खाक में क्यों मिला दिया? उसके वालिदैन को भरे मजमे में रुसवा करके उसे अपने किस इंतकामी जज्बे की तस्कीन मिली थी? मगर वो ये सब कैसे पूछती? वो तो शादी हाल से ही गायब हो गया था, और उसकी ये हरकत किरण को अंदर ही अंदर सुलझा कर राख बना रही थी। अगर उसे मुंह छुपाकर भागना ही था तो निकाह क्यों किया? जो भी इंतकामी कार्रवाई करनी थी निकाह से पहले करता। उसे अपने नाम के साथ बांध लेने के बाद वो बुज़दिलों की तरह फरार हो गया, ताकि वो पलटकर उसे जवाब तलब न कर सके। उसे साजिद से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, और ये उस नफरत की ही देन थी कि उसमें इतना हौसला पैदा हो गया था कि वो इतनी जल्दी सदमे से बज़ाहिर बाहर आ गई। इसलिए सुबह होने तक वो काफी बेहतर हालत में कमरे से निकल आई। लिविंग रूम में बैठे सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। किरण, हिना भाभी, वासिफ और आमिर की नजरें खुद पर जमी देखकर जल्दी से बोली,
दादा जान के पास कितने बजे चलना है? अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो उनके लिए कोई सूप वगैरह बनाकर ले चलते हैं। वो ऐसे बोली जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके अंदाज पर सब चकरा कर रह गए, साथ ही फौरन हरकत पर आ गए। किरण, वो सब मैं कर लूंगी, तुम बस अम्मी को संभालो। भाभी ने किचन की तरफ जाती किरण को रोककर धीमे लहजे में कहा तो वो एक पल के लिए किरण की आंखें डबडबा गईं। अम्मी के सामने बहादुर बनना सबसे कठिन था। वो गहरा सांस खींचकर उनके कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर चत लेटी छत को घूर रही थी। उनके चेहरे पर मलाल की 20 तहें देखकर किरण के दिल पर एक घोंसा पड़ा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी साजिद। किरण के दिल से बेइख्तियार सदा निकली थी, मगर जल्द ही वो अम्मी की तरफ मुतवज्जा हो गई। उस पर नजर पड़ते ही वो बिस्तर पर उठ बैठी और उसकी तवक्का के मुताबिक उसे देखते ही उनकी आंखें छलक पड़ी थीं। अम्मी, जल्दी से नाश्ता कर लें, दादा जान के पास अस्पताल जाना है। और मैं पड़े इन लिफाफों को देखती रही। पिछले 5 सालों से साजिद के भेजे इन अनगिनत खतूत के जवाब में सिर्फ 3 खत भेजे गए थे, जिसमें उससे शदीद नफरत का इजहार किया गया था। लेकिन हर माह उसकी अरसाल करदा रकम शदीद नफरत के बावजूद वसूल कर ली जाती थी। क्या बेहतरीन तरीका था इजहार नफरत का। लिफाफे पर मौजूद लिखाई देखकर किरण की आंखें फिर झिलमिलाने लगीं। कितनी बार उसे साजिद से शदीद नफरत महसूस हुई थी। उसे लगता था वो उसे कभी माफ नहीं कर सकेगी, मगर इस वक्त जो कराहियत उसे अपने बाप से महसूस हो रही थी वो उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। उसने अक्सर चौकीदार को खत संभाल कर रखते हुए देखा था, जो वो सिर्फ पापा के हाथ ही देता था, मगर तब उसे ये नहीं मालूम था कि वो खतूत पापा ने चौकीदार को खास ताकीद करके किसी और के हाथ में ना देने से मना किया होगा। वो तो दादा जान और चचा जान से भी ज्यादा हठधर्म और जिद्दी साबित हुए थे, जिनके लिए किरण हमेशा ये सोचती थी कि उनका कसूर इतना बड़ा नहीं था और उसकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन निकले। उन्हें अपनी अना हर चीज से ज्यादा अजीज थी। उन्होंने साजिद का खत देखकर इतनी छोटी सी खुशी भी उन्होंने साजिद का खत देखकर इतनी छोटी सी खुशी भी देना गवारा नहीं किया कि उसे तकलीफ पहुंचाने वाला खुद उससे माफी का ख्वास्तगार है। उन्हें सिर्फ ये फिक्र लाहक हो गई कि कहीं साजिद की माजरत और शदीद मोहब्बत के इजहार पर किरण उसके साथ चली गई तो उनकी इज्जत तो 2 कौड़ी की रह जाएगी। जिस शख्स ने उन्हें नीचा दिखाया था वो उस शख्स को वो चीज कैसे दे सकते थे जिसका वो शिद्दत से तालिब था। यही तो मौका था उसे तकलीफ पहुंचाने का, उसे बदला लेने का। अपनी धुन में उन्होंने जायज और नाजायज का फर्क भी खत्म कर दिया था। अगर जिशान ने मुखालफत ना की होती तो वो अदालत में झूठा केस दायर करके किरण को तलाक दिलवा चुके होते, और ये जानते हुए कि शरीयत की दी गई ये आसानी उन हालात में लागू नहीं हो सकती जहाँ शोहर खुद खत लिख कर बार बार बीवी को बुला रहा हो। लेकिन पापा अदालत से आजादी का परवाना मिलते ही एक निकाह पर दूसरे निकाह जैसे कभी गुनाह का इर्तिकाब करके उसे रुखसत कर देते। बाद में साजिद जो भी करता, उनकी बेटी हराम रिश्ते में बन जाती, उनका बदला तो पूरा हो जाता। किरण दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अगर साजिद ने वो तोहफा अपना नाम तहरीर किए बगैर ना भेजा होता तो वो भी किरण तक हरगिज ना पहुंचता, और उस तोहफे को ही देखकर जिशान भाई को एक बार फिर अखबार में इश्तेहार देने का ख्याल आया था। हालांकि ये कोशिश उन्होंने डूबते को तिनके का सहारा के जेर असर की होगी, मगर उनके फेल ने साबित कर दिया था कि जिद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती। उनकी इस कोशिश से ही साजिद ने उनसे राब्ता किया था। साजिद चुपचाप उसे हिचकियों से रोता देखता रहा। उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि ये खत किसने लिखे थे, मगर अपने सामने हर एक का कसूर मामूली नजर आ रहा था। अलबत्ता इस गलत फहमी में किरण दोनों तरफ से पिस गई थी, इसलिए वो चाहता था कि वो अपना सारा गुबार, अपनी सारी घुटन निकाल दे। बहुत देर बाद साजिद ने उसके हाथों को चेहरे पर से हटाते हुए अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दिए। एक बार तुमने कहा था ना, जिनके अंदर बहुत सन्नाटा होता है वो अपने आसपास शोरोगुल मचाए रखते हैं ताकि कोई उनके अंदर के खालीपन को महसूस ना कर सके। मेरे अंदर का खालीपन तो उसी पल तुम्हारी बात सुनकर खत्म हो गया था। मैंने ऐसे बेहिस लोग देखे थे कि जिनसे कुछ भी कह लो उन पर असर नहीं होता था, जबकि तुमने बगैर कुछ कहे सुने इतनी गहराई से सब महसूस कर लिया। तुम्हारी हसास फितरत ने उसी लम्हे मेरे अंदर जगह बना ली। मगर जब दादा जान ने हमारी शादी तय की तो तुम कहीं पसे मंजर में चली गई। मैं सिर्फ अपनी माँ के आंसुओं का हिसाब लेना चाहता था। असल कसूर तो मेरे बाबा का था। उनसे तो अरसा दराज से मैंने बातचीत छोड़ दी थी। वो एक ऐसी औरत के शोहर थे जिससे ना कुछ होते हुए भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। सिर्फ उनकी खुशी की खातिर मैंने बाबा से कभी बदला लेने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें मुझसे चाहे जो भी गिले शिकवे हों, मेरा यकीन करो, तुम्हें चोट पहुंचाकर मैं खुद भी कभी सुकून से नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए मुझे घर छोड़ आए, मैं आपकी कोई और बात नहीं सुनना चाहती। किरण ने उसके हाथों में से अपने हाथ खींचते हुए उसकी बात काट दी। साजिद कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने फौरन कार स्टार्ट करके घर की तरफ मोड़ दी। सारे रास्ते उसने एक लफ्ज नहीं कहा। जब किरण गाड़ी से उतरने लगी तब वो कहने लगा, तुम जो सजा देना चाहती हो दे दो, जितने दिन कहो मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज अलहदगी का मुतालबा कभी मत करना। उसके बेइंतहा इल्तिजाइया लहजे पर किरण ठटक कर उसकी तरफ देखने लगी। आपके आने से घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। अम्मी आपको देखकर बहुत वावेला मचाएंगी, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। पापा से ना सही, अम्मी से माफी मांगने जरूर आना चाहिए। पापा की मुझे परवाह नहीं, लेकिन अम्मी और जिशान भाई आपको माफ कर देते हैं तो फिर मैं सोचूंगी कि मुझे माफ करना है या नहीं। उसकी बेहद संजीदगी से कहने पर भी साजिद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे यकीन था कि वो बेहद हसास सी लड़की चाहे खुद कितनी ही सख्तियां झेल ले,
उस पर किसी किस्म की सख्ती का मुज़ाहिरा नहीं करेगी। हालाँकि उसने पूरी कोशिश की थी ये ज़ाहिर करने की कि उसने अभी साजिद को माफ़ नहीं किया, मगर वो जानता था कि उसका दिल साफ़ हो चुका है। तभी पहली बार अपने पुराने लहजे में आते हुए बोला, ज़ीशान भाई से माफ़ी माँगना तो बहुत मुश्किल है। उन्हें तो मौका मिल जाएगा उनकी शादी पर किए मज़ाक का बदला लेने का। तुम्हें याद नहीं उन्होंने क्या कहा था? तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए लड़की की आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि और भी कई तरीके हैं। वो खुशगवार वक़्त याद करके किरण ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट को बामुश्किल रोका था। उसके रोते चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी रमक धूप-छाँव का मंज़र पेश कर रही थी। साजिद इस खूबसूरत इम्तिज़ाज पर उसे देखता रह गया तो किरण तेज़ी से कार से उतरकर घर की तरफ बढ़ गई। ये स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। अच्छी स्टोरी थी। कमेंट्स में आप भी लाज़मी बताइएगा आपको कैसी लगी, और क्या करना है, स्टोरी को लाइक लाज़मी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और अपनी ढेर 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 सारी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।